I guess enough people लोग आ गए हैं. We can start the session, right? तो how was the setup पहले तो please everyone tell. किसी को कोई issues वगैरह आए हो या am I audible? Yeah, so how was the setup? Chat वगैरह में बता सकते हो यार. बाकी अगर कैमरास वगैरह ऑन कर लो तो इट इज़ बेटर, अगर कोई भी मतलब पॉसिबल है तो. आई गेस सेटअप सबने कर लिया होगा. गाइड मैंने दे दी थी एंड मैंने सबके वो रिव्यू भी कर लिए थे, तो ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक था. कईयों के 2-3 लोगों के एमुलेटर्स वगैरह ऑन नहीं थे. इवेंचुअली वो हम सेटअप कर लेंगे. बाकी जितना भी हो गया है फ्लटर वगैरह मोस्ट प्रोबेबली सबने इंस्टॉल कर लिया होगा. बाकी एक बार इन द कमेंट चैट वगैरह अपना करंट ओएस प्लस वेयर यू बिलोंग फ्रॉम एक बार चैट में डाल दो. वाइल पीपल आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं तो हेलो एवरीवन. ओके, विंडोज़ 11 राजस्थान, मैक ओएस, विंडोज़ यूज़र, मैक, विंडोज़. ओके, ऑलमोस्ट सभी विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, राइट? ठीक है. एंड बाकी लेट्स कंटिन्यू आगे. दिस इज़ मी, Rishi. Currently, I'm founding engineer at Zenbase, Singapore, and an EIR at Awadh, Rupert. And also, I've been a core member of GDGC from last year, from 1 year, and I'm ID 28 from NITJ, right? Let's continue. Here's the plan. So we will have first 2 days where we will plan and understand how Flutter actually works and basic syntax of Dart and Flutter. Then we can understand next the basics of networking, how you can connect your Flutter app to web applications or the internet, basics of Firebase also and databases also. Baki it will depend on key how the cohort speed goes. Baki we will also tell key how to monetize your app, how to add ad mob वगैरह, and how to make the app production ready for final release. And with this cohort, I don't know बाकी दोनों tracks में, but I will also try to integrate थोड़ा थोड़ा हर एक चीज़ का, like clean architecture and basically integrating with Firebase, etc. And the point of this is in 14 days we want you to make viral utility apps. So in utility app basically let's say जैसे कल रात मेंशन किया गया था कि CGPA कैलकुलेटर वगैरह, एंड a lot of people in the forum also mentioned about the mess app, कि a mess tracking app, etc. So we need small viral utility apps, so let's say a gym rep tracker or routine intake tracker, whatever. So simple apps, but eventually we will also give a direction to make it more complex eventually, right? So I guess we can start the class. किसी को कोई issues वगैरह या कोई doubt regarding the cohort or regarding any setup or etc. Okay, Ankit. Okay,
Okay, you can anytime ask me anything. You can open the mic, ask me questions, or if you drop anything in the chat. एक सेकेंड, मैं दूसरे फ़ोन से ज्वाइन कर ही लेता हूँ सो दैट आई कैन ऑल्सो सी द चैट्स, राइट? 1 second. Okay. Yeah, can someone send a message in the chat? Any message? Just to check. Cool. Okay, thank you. So I'm looking into the chats, but agar if I don't respond somehow, you can obviously open the mic and ask me anything. So let's start with the basics and Flutter. Anyone of you know what is Flutter and any basically prerequisite knowledge you have about Flutter, or you might have researched around it? Anyone? You can open the mic and start speaking. Okay. Anyone else? Okay, cool. Basically, yeah, it is a cross-platform development framework, and it is open source. It is made by Google, and if I'm not wrong, it was released as alpha in 2017. And you can write single code base and deploy it into maybe an Android app, iOS app, or even embedded systems. So embedded systems, anyone knows embedded systems, or someone from electronics department or instrumentation control, anyone knows? Yeah, so can someone tell me from first principles, or if you know ki what are embedded systems? Someone said yes. Okay, never mind. So embedded systems, uh, I guess you guys should go down the road and in a rabbit hole and search what are embedded systems. These are one of the, yeah. Okay. Yeah, exactly. So eventually, if you are from say CS or IT department, or even electronics and instrumentation control, you will eventually learn what are embedded systems and how to write drivers for them. One of the most interesting computer science systems. So for this example, we have car screens. So car screens are also embedded systems, and the UI for the car screens, for the modern car screens, if you have seen, most big companies are using Flutter nowadays. Some of the examples are BMW and Toyota. So the apps they are using to connect their embedded systems, which are the car screens in the car we use, is also made by Flutter. Right, so there is an operating system also which Google is being developing from a lot of time, named Google Fuchsia. So my pronunciation might be wrong, but the UI layer for that also is being developed in Flutter. So let's talk about native versus Flutter. Anyone knows what I'm talking about here, native versus Flutter? What is native app development or general native development? Anyone? Okay, never mind.
So, native basically means when you directly talk to the operating system for which you are going to develop with, right? So, let's assume that maybe let's first discuss some native languages or frameworks. So, one of which is Kotlin, right? If anyone knows Kotlin, and then we have Swift, which we are also being taught in this cohort. Two are these, and then for developing natively for, let's say, Windows, you might require .NET, or for developing for something like Mac OS natively, you require Cocoa to interact with the operating system. So in native, things are very dumb in the sense that the framework, assume Kotlin here for instance, अगर you will write कि I want to make a button, तो मुझे बटन बनाना है कोटलिन में, तो the Kotlin just passes this instruction कि मुझे बटन बनाना है eventually to an operating system, which in this case is Android, right? तो अगर कोटलिन में यू राइट कि मुझे बटन बनाना है, द इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली पास टू बेसिकली एंड्रॉयड, एंड उसके बाद एंड्रॉयड फिगर आउट करेगा इंटरनली कि मुझे बटन बनाना कैसे है, ठीक है? अब बटन बनाना इज़, व्हाट इज़ बटन बनाना इवेंचुअली? इफ़ यू सर्च बटन हेयर, बटन इन एप्स, लेट्स सर्च दिस। हाँ, तो ये एक स्क्रीन है, इस पे एक बटन है, ठीक है? अब ये बटन इज़ अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में देर आर सर्टेन पिक्सल्स इस स्क्रीन पे, बिकॉज हर एक जो स्क्रीन है इस पे RGB वैल्यूज़ हैं, देर आर मल्टीपल पिक्सल्स। तो अगर 1920x1080 की स्क्रीन है जिस पे मैं अभी करंटली हूँ, तो इस पे इसको मल्टीप्लाई करके जितने पिक्सल्स आपके पास बनेंगे उतने पिक्सल आ जाएंगे। अब अगर आपको यहाँ पे जो ये सेव है, ये सेव वाला बटन है जो ये वाला, तो इसमें अगर यू नीड टू ड्रॉ दिस, यू जस्ट नीड द कोऑर्डिनेट्स कि अगर जो ये स्क्रीन है इस पर जो ये रेक्टेंगल जो मुझे बनाना है इसके कोऑर्डिनेट्स कहाँ हैं। अब उस कोऑर्डिनेट्स को हम ब्लैक से कुछ सर्टेन कलर का कर देंगे, अब जो भी इसकी RGB वैल्यू होगी, दैट्स इट। इतना सबको समझ में आ रहा है कि हाउ अ बटन इज़ बीइंग मेड? रिस्पॉन्ड करो यार। ओके ओके, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि हमें बटन कैसे बन रहा है और स्क्रीन पे कैसे रेंडर हो रहा है। तो नेटिव फ्रेमवर्क्स या लैंग्वेजेस क्या करती हैं कि इट डायरेक्टली टेल्स द OS कि भाई ये लोकेशन है, ये कलर है बटन का, इसमें टेक्स्ट लगाना है और मुझे बटन बना के दे दो। तो बाकी का जो सिरदर्दी है इवेंचुअली एंड्रॉयड या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, दैट विल हैंडल, ठीक है? बट फ्लटर इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम बाकी की ऑपरेटिंग सिस्टम्स। फ्लटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स बोल रहा हूँ, फ्रेमवर्क्स। फ्लटर इज़ अपेरेंटली जस्ट अ गेम इंजन। सो इसमें क्या है कि यू आस्क फॉर द फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम कि भाई तुम अपना काम जो करते हो करते रहो, बट मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, जस्ट गिव मी अ ब्लैंक कैनवास, ब्लैंक स्क्रीन, वाइट स्क्रीन दो मुझे, इसके बाद का काम मैं करूँगा, मैं बनाता रहूँगा इस पर जो मुझे बनाना है, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? तो दैट्स वाई कि अगर यू विल गो की बटन इन iOS एंड साइमल्टेनियसली यू विल गो, हाँ यहीं पे आ जाएगा, नहीं ठीक है, एंड बटन इन एंड्रॉयड, तो दिस इज़ अ नेटिव बटन इन एंड्रॉयड, ये वाला, या सिमिलर टू दिस और समथिंग लाइक दिस, और दिस इज़ अ नेटिव बटन इन iOS। तो अगर मैं एक ऐप बनाता हूँ स्विफ्ट से और एक ऐप बनाता हूँ मैं उससे क्या कहते हैं कोटलिन से, विच आर नेटिव फ्रेमवर्क्स फॉर डेवलपिंग iOS एंड एंड्रॉयड ऐप्स, तो अगर मैं उसमें लिखूँगा कि मुझे बटन बनाना है तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा बटन बनेगा, और अगर मैं एंड्रॉयड पे लिखूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऐसा बटन बनेगा जो यहाँ पे है, ठीक है? तो दैट्स वाई कि हमें इनकन्सिस्टेंसीज दिखती हैं हर बार। सिमिलरली फॉर वेबसाइट्स, तो अगर मैं कोई रैंडम वेबसाइट खोलता हूँ, लेट्स अज्यूम क्या खोला जाए, गीक्स फॉर गीक्स लेट्स से, तो
इसमें भी जो ये बटन है ये तो आप इवेंचुअली डिज़ाइन कर सकते हो, अगर किसी ने भी HTML CSS पढ़ी है, ऑब्वियसली बहुत लोगों ने पढ़ी होगी, तो अगर इस पर आप इवेंचुअली डिज़ाइन कर सकते हो। बट अगर जब आप सिर्फ एक बटन टैग डालते हो तो इवेंचुअली देर इज़ सम स्टाइलिंग टू इट, देर आर सम शेडोज़ टू इट, देर इज सम कलर टू इट, वो ऑटोमेटिकली हैंडल करता है कौन, ब्राउज़र हैंडल करता है। तो HTML भी सिमिलरली एक डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है, उसमें आपने डिक्लेयर कर दिया कि भाई मुझे बटन चाहिए, इस पोजीशन पे चाहिए, उसके बाद का काम वो ब्राउज़र करेगा। तो दैट्स वाई ब्राउज़र में भी अगर आप सेम चीज़ डेवलप करते हो फॉर मतलब खोलते हो लेट्स ऑन सफारी एंड ऑन अनदर हैंड फायरफॉक्स, तो आपको तब भी डिज़ाइन का फ़र्क दिखेगा, ठीक है, बिकॉज द रेंडरिंग इंजन्स आर डिफरेंट सिमिलरली फॉर एंड्रॉयड एंड iOS। तो अगर मुझे लेट्स से कुछ करना है, ऐप बनाना है, तो व्हाट आई कैन डू इज़ राइट माई ओन कस्टम इंजन जो ये करता हो। तो वो मैं लिख लूँगा, मैं लिख लेता हूँ कि मतलब मेरे पास अगर एक खाली स्क्रीन है जिस पे पिक्सल्स हैं, तो पिक्सल्स कैसे आएंगे मेरे पास, किसी के पास मतलब एवरीवन नोज 2D एरेज राइट, या सो 2D एरेज हमें पता है कि जैसे दिस रिजेंबल्स टू ए 2D एरे राइट। दिस ऑल्सो, अगर इसमें मैं और पार्टीशन कर दूँ, बिकॉज ईच एरे इन हेयर ऑल्सो हैज़ एलिमेंट्स, तो दिस इज़ वेरी सिमिलर टू समथिंग लाइक अ डिस्प्ले। लेट्स open the last of the slides. Can you see this key? This is a 2D array at the right and this is the display with pixels. तो जो एक मिनट इसको मैं चेंज करता हूँ यहाँ थोड़ा सा। तो जो ये पिक्सल्स हैं बेसिकली ये वाले, तो यहाँ पे दिस इज़ वन एलिमेंट, दिस इज सेकेंड एलिमेंट, बट दिस सिंगल एलिमेंट जो यहाँ पे है, फॉर इंस्टांस अगर हम इसकी एनालॉजी लें इससे, जिसमें वन स्टोर्ड है, इसमें 3 कलर वैल्यू स्टोर्ड है, ठीक है, हर एक एलिमेंट में। तो दैट इज़ हाउ अ डिस्प्ले वर्क्स सिंपली, ठीक है, इतना सही है। अब अगर मैं एक खुद का इंजन बना लूँ फॉर द सेम वर्क, जो मैं बहुत ईजिली बना सकता हूँ, तो मेरे पास और एक और चीज़ कि हर सेकेंड में इसको अपडेट करता रहूँ और लिसन करता रहूँ अपडेट्स को कि क्या मुझे कुछ चेंज करना है स्क्रीन पे। एक सेकेंड, तो मुझे क्या कुछ लिसन करना है स्क्रीन पे, इन द सेंस कि लेट्स से देर इज़ अ काउंटर बटन, तो मैं अगर बटन क्लिक करता हूँ तो द काउंटर इंक्रीजेस, ठीक है। इसको बंद ही कर देते हैं यार। हाँ, तो अगर दिस इज़ अ ऐप वेयर आई प्रेस अ बटन एंड दिस काउंटर इंक्रीजेस, तो ये जो टेक्स्ट है ये भी पिक्सल्स की वैल्यूज़ हैं, ये भी इवेंचुअली चेंज हो जाएंगी जब मैं बटन प्रेस करूँगा। तो बस मैं इतना सा बना सकता हूँ एक, कि अगर मैं हर एक जगह पे लेसन करता रहूँ कि अगर मैं कहीं प्रेस करता हूँ तो मुझे चेक करना है कि कौन से पिक्सल्स को मुझे इवेंचुअली चेंज करना है। तो जो मेरा 2D एरे था ये वाला, इसमें अगर यहाँ पे पिक्सल की मतलब RGB वैल्यूज़ चेंज करनी है तो मैं उनको चेंज कर दूंगा, तो सिमिलरली ये 135 के 5 से 6 हो जाएगा। यही सारा कुछ है जो फ्लटर मैन्युअली कंट्रोल करता है, इंस्टेड कि वो डेलीगेट कर दे अपना टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम पे कि भाई तुम कर लो, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू है क्या, कि अभी तक क्या हुआ? फ्लटर इज़ मैन्युअली कंट्रोल्स जो पिक्सल की रेंडरिंग है, इंस्टेड कि इट डेलीगेट्स इट टू एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, पीछे आते हैं थोड़ा सा एंड so this is also an example कि this is a native button switch in Android and this is a native switch in iOS. So these are designed by Android के engineers and iOS के engineers. So this is what जो वो provide करते हैं when you to Kotlin और Swift, जब you tell the operating system कि भाई मुझे switch बनाना है, ठीक है।
ये हमने देख लिया सारा कुछ. Flutter brings its own rendering engine. हाँ, so Skia, what is Skia? Skia is a rendering engine which was being used by Flutter. So जैसे यहाँ लिखा हुआ है, it's 2D graphic library written in C++ and everything from Android, Chrome and Firefox Skia powers. ठीक है. So वैसे तो this was designed for browsers जिसमें हाई परफॉर्मेंस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बट इवेंचुअली हम इसे मोबाइल ऐप्स में भी यूज़ करने लगे हैं, जैसे कि फ्लटर. तो फ्लटर बहुत टाइम तक स्किया ही यूज़ कर रहा था, अभी भी यूज़ करता है, बट इवेंचुअली इट हैज़ शिफ्टेड टू अ मोर बेटर इंजन विच इज़ इम्पेलर. सो उसके बारे में भी देखते हैं, बट दिस इज़ द इंजन विच डज़ एवरीथिंग कि मतलब एक स्क्रीन है, उस पर मुझे बॉक्स बनाना है, उस पर मुझे टेक्स्ट लिखना है, ये सारा कुछ स्किया हैंडल करता था फ्लटर के लिए. सो लेट्स से यू वांट टू ड्रॉ अ सर्कल, you give this instruction to Flutter then gives this instruction to Skia then talks to GPU. GPU then creates the specific basically multiplies the matrix वगैरह या changes that array specifically जहाँ पे pixels की values change करनी है, and then it gives back to the canvas जहाँ पे हमें इसको build करना है. GPU क्यों? बिकॉज GPU एज एवरीवन नोज कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के लिए यूज़ होता है मोस्टली. तो विच टाइप ऑफ मैट्रिक्स भी डिपेंड करता है, वो हम आगे देखते हैं, कोई नहीं. बट दिस इज़ समथिंग विच एवरीवन गॉट इट राइट, कि इफ़ यू वांट टू ड्रॉ समथिंग फ्रॉम कोटलिन, लेट्स से अ बटन और अ सर्कल, इट डायरेक्टली गोज़ टू एंड्रॉयड, देन एंड्रॉयड हैंडल करता है वो, हमें एब्स्ट्रैक्शन लेयर है, हमें कोई लेना देना नहीं है. बट फ्लटर के केस में देयर इज़ एन इंजन कॉल्ड स्किया विच देन टॉक्स टू GPU एंड बेस्ड ऑन दैट स्किया हैंडल्स की बटन कहाँ बनेगा, कब चेंज होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट. स्किया ऑल्सो रिलाइज ऑन OpenGL. तो OpenGL, अब जो ये स्किया और GPU है, इनके बीच में भी कम्युनिकेशन ट्रांसलेटर है, जो कि जो स्किया के टर्म्स हैं उनको हमें ट्रांसलेट करना है GPU में, कि GPU को बताना है कि हाउ टू मेक दिस बटन या कहाँ पे बटन बनाना है. तो वो उसको कम्युनिकेशन के लिए वी यूज़ OpenGL. OpenGL इज़ अ यूनिवर्सल ट्रांसलेटर, कि अगर आपको वेब में बनाना है तब भी यू कैन यूज़ OpenGL. इफ़ यू वांट टू मेक इट ऑन विंडोज़ और मैक OS एक्सेट्रा, यू कैन यूज़ OpenGL. दिस इज़ व्हाट स्किया रिलाइड ऑन. ठीक है. तो अब इसमें कितनी सारी लेयर्स आ गई हैं कि पहले फ्लटर स्किया से टॉक करेगा, स्किया OpenGL से, OpenGL GPU से, फिर GPU वापस फ्लटर से. तो दैट्स वाई इट इज़ स्लो. कि अगर इफ़ यू वांट कि बेसिकली कितने फ्रेम्स होते हैं जनरली गेम्स में, टू फील कितना स्टटरिंग नहीं हो रही है या जैंक नहीं है. कैन एनीवन टेल मी कि कितने फ्रेम्स होते हैं? कि इफ़ यू वांट कि अगर मेरी आईज़ को ना लगे कि वी आर इट इज़ नॉट अ वीडियो, हाँ 30 और 60, जनरली इट इज़ 24. उसके पीछे यू रियलाइज़ कि इट इज़ नॉट अ वीडियो एंड सीरीज ऑफ फ्रेम्स, बट जनरली वी ट्राई टू कीप एवरीथिंग ऑन 60 फ्रेम्स. कि अगर डिस्प्ले भी आपकी 60 हर्ट्ज की है, तो यू ट्राई टू कीप की 60 फ्रेम्स तो रेंडर हों हर सेकेंड. तो मतलब जो स्क्रीन है वो 60 टाइम्स रिफ्रेश हो हर 60 सेकेंड्स हर सेकेंड में. ठीक है. तो यू नीड 16 मिली सेकेंड्स ऑफ टाइम फॉर 1 फ्रेम टू रेंडर. इफ अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन करें तो हम एक मिनट. सॉरी एवरीवन. तो इफ़ यू ट्रांसलेट की अगर मुझे 60 फ्रेम्स पे अपनी वीडियो को या अपनी ऐप को प्ले करते रहना, तो यू नीड 16 मिली सेकेंड्स फॉर 1 फ्रेम टू रेंडर. अब अगर मैं स्किया को देता हूँ एंड लेट से इट टेक्स 20 मिली सेकेंड्स, तो ऑब्वियसली यू विल रियलाइज़ कि कुछ तो जैंक है वीडियो में या स्क्रीन में आपकी, एंड दैट्स हाउ यू विल रियलाइज़ कि इट इज़ not that efficient. But Flutter has been using this from a lot of time and it has been good. ठीक है. So what is the issue with Skia? That it compiles in JIT, just in time. So अगर मुझे इंस्ट्रक्शन दी गई है कि मुझे अब बटन बनाना है या फिर मुझे कोई एनिमेशन बनानी है, या लेट्स से देयर इज़ अ
circle which I want to scale into a bigger circle. So this is the instruction. अब Skia does this when you are told कि let's say अगर मैं ऐप ओपन करता हूँ तभी मुझे दिखाना है, ठीक है. तो then it calculates. So does Flutter affect device performance because it brings its own rendering engine? Native does not. Yeah, so we will talk about that ki how it is faster or slower comparative to other frameworks. Let me complete ki JIT and AOT, then we can discuss on that. Yeah, so JIT is something that जब मुझे इंस्ट्रक्शन मिली है कि लेट से ऐप ओपन होने के बाद 3 सेकेंड्स वेट करो एंड देन scale a circle from size 0 to size 10, let's say. तो on that time it calculates कि अच्छा ये सर्कल बनेगा. और अब सर्कल बनाने के लिए भी there are certain issues कि if you obviously know कि x square plus एक सेकेंड, if you know कि x square plus y square, यार ये तो काफ़ी, x square plus y square equal to r square. तो this is how you will make a circle. तो अब इसके लिए यू हैव टू परफॉर्म कैलकुलेशंस कि x क्या होगा, y क्या होगा, सेंटर क्या होगा, एंड बेस्ड ऑन दैट यू विल मेक वन सर्कल. एंड यू हैव टू परफॉर्म दिस कैलकुलेशन. अगर वो स्केल कर रहा है सर्कल, लेट्स से 3 सेकेंड में वो स्केल कर दे रहा है फ्रॉम 0 to 10, तो हर सेकेंड 60 बार आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द करंट साइज नाउ, वेयर टू प्लेस दिस सर्कल. एंड आपको पिक्सल्स की वैल्यूज़ भी चेंज करनी पड़ेंगी कॉन्टीन्यूसली. तो ये सारा कुछ ऑन टाइम जब हमने इंस्ट्रक्शन दी है तब करता है, विच दैट इज़ JIT. आगे भी आएगा बहुत जगह पे इवेंचुअली जब हम कंपाइलेशन वगैरह पढ़ेंगे, बट दैट इज़ व्हाट Skia डज. सो टू सॉल्व दिस इशू, Flutter said कि it is enough and they rewrote the whole rendering engine themselves. So they made Impeller, which is now being rolled out slowly after Flutter 3 on iOS and Android. There are still some issues, but it is much faster than Skia because it does ahead of time compilation. तो अगर आपको पहले से ही पता है कि जब ऐप ओपन होगा उसके 3 सेकेंड बाद मुझे एक सर्कल है उसको 0 से लेके 10 तक स्केल करना है, तो ये सारी कैलकुलेशंस आप जब ऐप बना रहे हो तभी करके रख लो अपने पास. तो आपका जो छोटा डिवाइस है, जैसे मेरी मैकबुक है अगर मेरे पास, तो इट हैज़ ऑब्वियसली अ वे बेटर प्रोसेसर एंड एवरीथिंग देन माई आईफोन, राइट. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस इन आईफोन या एज डिवाइस इन द सेंस कि वही कि मतलब जिसमें कंप्यूट वगैरह कम है एंड यू आर डायरेक्टली कंप्यूटिंग ऑन स्मॉल डिवाइसेस, तो डूइंग दैट उस पर करने की जगह आप इसको मेरे पावरफुल मशीन पे ऑलरेडी कंपाइल कर लो. उसका इंस्ट्रक्शन सेट आप पहले से एम्बेड कर दो कि अच्छा ये कैलकुलेशन है कि ये वाले पिक्सल्स कलर होंगे, फिर अगले फ्रेम में ये वाले पिक्सल्स कलर होंगे, अगले फ्रेम में ये वाले पिक्सल्स कलर होंगे. बेस्ड ऑन दैट यू कैन ऑलरेडी कंपाइल ahead of time कि क्या होने वाला है, and that's how you can increase the performance of what is being done on the screen. So Flutter made a new engine which is Impeller, and Flutter is right now using it and slowly improving it. Yeah, that's yes. So Impeller OpenGL यूज़ नहीं करता है. Impeller because हमने डिस्कस करा था कि Skia uses OpenGL which is easy to use, and उसके बाद you can instruct OpenGL कि talk to the operating system or the GPU. कहाँ गया वो डायग्राम कहाँ है, ये रहा. तो we told कि Skia to talk to the GPU or the hardware to basically calculate or multiply, right? But it does not uses OpenGL, it uses Vulkan and Metal. What are Vulkan and Metal? Anyone knows what is Vulkan and Metal? Anyone? Okay, I'm assuming कि you guys don't know कि what is Vulkan and Metal, but these are, yeah, kind of. This is not a rendering engine, Sudhanshu. It is kind of an API which is provided by the manufacturer of the operating system. So let's say Android.
If you want to communicate with the GPU, you need to talk to the hardware. But अब हर hardware is different, हर एक different Android में there is a different hardware. तो Android has standardized a system, an API, कि अगर आपको hardware से बात करनी है तो you need to give some certain instructions to a system which is called Vulkan. And iOS has also made, and macOS both has also made a system which is called Metal to interact with the hardware. तो this layer जहाँ पे OpenGL हम यूज़ कर रहे थे, OpenGL भी eventually talked to these guys कि Vulkan and Metal to do the stuff. बट Skia को मतलब झंझट नहीं लेना है कि मतलब मुझे अगर 100 ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे काम करना है तो मैं 100 डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स की APIs विच इज़ Vulkan एंड Metal फॉर लेट्स एंड्रॉयड एंड iOS एंड macOS, मैं उनसे बात करूँ. Skia सेड कि मैं OpenGL विच इज़ एन यूनिवर्सल ट्रांसलेटर जिसने मेरे लिए सारा काम कर रखा है Vulkan एंड Metal, मैं OpenGL को डेलीगेट कर दूँ, उसके बाद वो फिगर आउट करता रहेगा कि Vulkan से बात करनी है, Metal से बात करनी है, कैसे बात करनी है. बट यू कैन ऑब्वियसली सी बीच में कि अगर Skia आएगा, फिर Skia OpenGL के पास जाएगा, फिर OpenGL बैठेगा, फिर वो फिगर आउट करेगा कि भाई मुझे अब इस टाइम पे Vulkan की API से बात करनी है, फिर वो Vulkan को पास करेगा इंस्ट्रक्शंस, फिर Vulkan प्रोसेस करेगा, फिर वो GPU के पास जाएगा. तो देयर आर सो मैनी लेयर्स जिसको हम बेसिकली मिडल मैन्स विच वी आर ट्राइंग टू कट डाउन, एंड दैट्स वाई Flutter team directly decided to cut OpenGL and directly integrated with Vulkan, Metal and multiple other operating systems or APIs, right? So this was Vulkan and Metal. यहाँ पे देख लेते हैं. We have a Flutter code and we have the physical GPU hardware. They don't speak the same language. That's why we need translators, and the translators are Vulkan and Metal, right? There were so many things, Skia, Impeller, Metal, OpenGL, Vulkan. Anyone has any issues or anything कि boring लग रहा है या overwhelming हो रहा है कुछ कि बताओ, समझ आ रहा है क्या सभी को कि क्या हुआ अभी तक, क्या हुआ? Can someone voluntarily open the mic and tell me कि what was the sequence कि क्या हो रहा था अभी तक? Okay, what were the translators? So as I told कि there are different hardwares. Let's say there's a single Android phone, मेरे पास 10,000 का भी है, 20,000 का भी है, 40 का भी है. So there are different GPUs which in all of these devices. तो अब Android doesn't want कि you directly as a Android developer या as a mobile developer, I don't want कि मैं अगर मार्केट में 1000 फ़ोन्स हैं, मैं उनके अंदर 500 डिफरेंट GPUs हैं, हर एक फ़ोन में अलग GPU होता है, तो मैं उस GPU को कैसे इंस्ट्रक्ट करना है, मैं उन सब के लिए 500 के लिए लिखूँ. तो अगर मुझे एक ऐप बनाना है, फिर मुझे मेरे मतलब मार्केट में 500 फ़ोन्स हैं, कल को 10 फ़ोन्स और निकल रहे हैं, तो आई डोंट वांट कि मैं सबके साथ इंटरेक्ट करूँ GPUs वगैरह के साथ, एंड उन सब के लिए स्पेसिफिक कोड लिखूँ. बिकॉज लेट्स से अगर मेरी मैक में लेट्स से उसका GPU है M4 के अंदर जो इंटीग्रेटेड GPU है वो है, या फिर आपके डिवाइस में NVIDIA का है, किसी और में AMD का है, तो लेट्स अज्यूम दीज एग्जांपल्स. फ़ोन्स में दे आर ऑब्वियसली डिफरेंट GPUs. तो दे आर लेट्स से 3 GPUs, डिफरेंट काइंड ऑफ GPUs, एंड तीनों का वर्किंग मैकेनिज्म इज़ डिफरेंट, handling the instructions is different. So I don't want to write for all the three GPUs differently कि भाई जब NVIDIA का GPU आएगा तो ऐसा करना कि certain instructions पास कर दो, या फिर AMD का GPU आएगा तो certain instructions पास कर दो. We don't want that. That's why the operating system at its own capacity वो बात करता रहता है different GPUs के साथ, वो उसका headache है. But it exposes a kind of interface which in Android के केस it is Vulkan, कि आप Vulkan को बता दो कि करना क्या है. Vulkan फिर Android से बात करके Android फिगर आउट कर लेगा कि इस GPU को, जो सर्टेन GPU है इस डिवाइस में, इस हार्डवेयर में, हाउ टू इंटरैक्ट विद दैट. ठीक है. सेम Metal, फॉर Metal it is for iOS and macOS कि if you want to interact with Mac के GPUs और हार्डवेयर, macOS और iOS
it on its own capacity gives an API, or basically for now let's remove the term API, but interface to communicate with the GPU. Got it? किसने पूछा था ये? तपिश. What were the translators? These were the translators, Vulkan and Metal. There are multiple translators, but for app development we are only considering Vulkan and Metal. These are very hard to write, by the way, so I have written some code for Vulkan also. So अगर आपको ओपन जी में 100 लाइन्स लिखनी पड़ेंगी, वल्कन में आपको 1000 लिखनी पड़ेंगी टू गेट द सेम आउटपुट. सो दैट्स वाई स्किया एंड अदर इंजन्स डायरेक्टली टॉक टू ओपन जी की हेडेक कम हो जाए. But eventually, if you want to increase the performance, raw performance, you need to have that headache and write 1000 lines for Vulkan and Metal. Got it? Okay. Ayush. No. So as I told कि जब कोटलिन में आपको बटन बनाना है तो दैट इंस्ट्रक्शन इज़ इवेंचुअली पास टू द ऑपरेटिंग सिस्टम. उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली हैंडल्स कि मुझे, बिकॉज उसके पास वही है, वल्कन ही है, तो डायरेक्टली पासिस टू काइंड ऑफ वल्कन ऑल्सो, कि देन दे फिगर आउट कि हमें हाउ टू इंटरेक्ट टू GPU, बिकॉज दैट इज़ द बेस API जो एग्जिस्ट करती है ऑन टॉप ऑफ द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम. सो दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग कि directly passing to the operating system. That's the API which is provided by the operating system, which is Vulkan in this case, and you directly pass to Vulkan and then we figure out. So that's why someone asked about performance of the rendering engines. So yeah, it is very similar. Flutter has achieved very similar performance to native operating system, native systems, but yeah, there is obviously some delay, and but that is basically, yeah. So Kotlin and Swift are obviously faster than Flutter, but Flutter is very close to that. But if you go to other operating systems like React Native, they are significantly slower than Flutter. So Flutter is way fast than its competitors. But obviously, if you think कि अच्छा this is slow, this is also easier for development purposes कि because it is cross platform. And how it was made cross platform हमने वो figure out कर ही लिया, because हमें instruction sets देने ही नहीं है, हमें तो सिर्फ इतना सा करना है कि we want a blank canvas, कि भाई इस operating system के पास गया blank canvas दे दो. अब ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई लेना देना नहीं है, हम अपने आप करते रहेंगे कि हमें क्या रेंडर करना है, क्या रिमूव करना है, क्या ऐड करना है, बटन कैसे बनाना है. दैट्स वाई यू कैन मेक वन थिंग इनटू मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स कंसिस्टेंटली. ठीक है, दैट्स हाउ इट इज़ क्रॉस प्लेटफॉर्म. बट इट कम्स विद द कॉस्ट कि थोड़ा सा स्लोअर है, एंड बिकॉज इट इज़ थोड़ा सा स्लोअर, that doesn't matters to big companies or us, because we are getting a benefit कि we can deploy by writing single app into multiple platforms, है ना. अब React Native क्यों slower है? Anyone understands JavaScript थोड़ी बहुत? Anyone else aside Ashmit? Okay, so if you guys don't know JavaScript, it is also a language for the browsers. We will talk about it later when we understand Dart eventually. But the point about that is that the whole engine, because the browser on which you have the Google Meet right now, it only understands two things: HTML, CSS, and JavaScript. That's it. Anything else is eventually compiled down to JavaScript for the browser to understand. तो जो React Native है, it is for the people कि almost everyone knows React. Someone at least knows what React is. कि what React is. Can someone tell me? Or at least someone can say कि I know what is React. You have heard of React, someone? बोल अंकित एंड आयुष कुछ बोल रहे थे यार. आप लोग बोलते रहो यार, कुछ भी बोल सकते हो, मतलब ऐसा कोई सही होना कुछ वो तो है नहीं है.
Okay. For what? ओके, सुधांशु JS फ्रेमवर्क, कूल. तो यू गाइज आर राइट जितना, बट द पॉइंट इज़ कि लॉट ऑफ रिएक्ट केम इन अराउंड 2013-14, आई एम नॉट श्योर, around this time. It was also made by Facebook for making Facebook, and it became very popular because it solved a lot of issues. So a lot of web developers which are cheap to hire already knew React. So to for people to switch to also making mobile developers, so let's say अगर मैं React developer हूँ या मेरी कंपनी है let's say, तो इफ़ आई वांट टू लेट्स से हाई, मेरे पास एक वेबसाइट है, मैंने 10-12 रेक डेवलपर्स हायर कर लिए, वी हैव लॉन्च द वेबसाइट, वी आर डूइंग रेवेन्यूज़ एक्सेट्रा. एंड अगर कल को मुझे मोबाइल ऐप बनाना है तो मुझे अब कोटलिन और स्विफ्ट वाले डेवलपर्स हायर करने पड़ेंगे. एंड मेकिंग अ मोबाइल ऐप इज़ इवन हार्डर देन मेकिंग अ वेबसाइट, तो इट विल टेक more cost, right? So to transition people from React to React Native, React to mobile development, they made a framework which is very similar to React Native, which works for Android and iOS. अब इसमें क्या इशू है कि बिकॉज ब्राउज़र्स तो अंडरस्टैंड करते हैं जावास्क्रिप्ट, बट मोबाइल्स डोंट अंडरस्टैंड जावास्क्रिप्ट. कैन एनी वन टेल कि एंड्रॉयड्स स्पेसिफिकली, लेट्स जैसे मैंने बताया कि पहले किसी को ये पता था कि ब्राउज़र्स अंडरस्टैंड जावास्क्रिप्ट, या अब तो पता ही है, तो कैन समवन टेल मी कि व्हाट एंड्रॉयड्स अंडरस्टैंड, विच लैंग्वेज जनरली एंड्रॉयड्स अंडरस्टैंड? एनीवन, या गलत भी हो सकता है, सी में भी. ओके, बाइट फाइल ऑफ जावा. और एनीवन एल्स? Okay. So yeah, it Androids understand Java mainly. I will also tell the basic architecture eventually, कि how Java is being rendered and why Java was used. अगर लास्ट में टाइम बचा तो we will see. Someone remind me अगर लास्ट में टाइम बचा तो. But yeah, so what we were talking कि React, so they understand Java, they don't understand JavaScript. So for अब मुझे लिखनी तो जावास्क्रिप्ट ही है बिकॉज मैं तो एक डेवलपर ही हूँ. तो देर इज़ अ जावास्क्रिप्ट इंजन, पूरा इंजन जो ब्राउज़र्स अंडरस्टैंड करते हैं. इट इज़ ऑल्सो शिप्ड विद मोबाइल ऐप, ताकि मैं जावास्क्रिप्ट लिख पाऊँ, फिर वो इंजन में से पास हो, इवेंचुअली इट मेक्स इनटू जावा. तो जो डेवलप, तो मतलब एक बार मैंने मेहनत वाला काम कर लिया कि मैंने एक इंजन लिख लिया ऐसा जिसमें मैं जावा डालूँ, जावास्क्रिप्ट डालूँ, जावा निकले, काइंड ऑफ. तो it is easier for React developers to understand this new framework for the mobile applications. तो that's because कि अब जो ये सारा झंझट है कि इसमें मुझे एक इंजन लगाना पड़ेगा बीच में जो मेरे लिए जावास्क्रिप्ट से जावा में कन्वर्ट करता है. दैट इज़ ऑब्वियसली अ बॉटलनेक बीच में ऑफ फॉर परफॉर्मेंस. तो व्हाट वी अंडरस्टूड कि ऑब्वियसली द नेटिव वंस कोटलिन एंड स्विफ्ट आर द फास्टेस्ट, बट द इशू इज़ कि वो क्रॉस प्लेटफॉर्म नहीं है. तो दिस इज़ सॉल्व बाय फ्लटर. इट इज़ फास्ट इनफ, also cross platform. Then there is React Native, which is a little slower, but they are internally changing a lot of architecture right now as we speak, to basically improve the performance, etc. But that's something which we understood, right? सही चल रहा है अभी तक सारा कुछ. अगर किसी को कोई इशू वगैरह है तो no. Impeller is written by Flutter engineers only. Flutter के लोगों ने बनाया. They don't have the rendering engine. They have a JavaScript bridge to communicate with the Android APIs, macOS APIs. Anyone else? कुछ अगर मतलब सब सही है क्या, मतलब बोरिंग वगैरह तो नहीं है ना कुछ? Because eventually after next we will go into Dart and writing basic, creating Flutter apps and all good this far. Okay.
Okay, I wanted to say one thing कि अगर if anything doesn't make sense Vulkan, Metal, Skia, Impeller, it's all right. There are no issues. This is engine stuff to understand how Flutter works. But because Flutter is a framework which is there to help us build stuff easily, we don't need to understand कि internally in this black box which is Flutter, you don't need to understand कि क्या हो रहा है, but it is always good to understand कि हो क्या रहा है. Yeah, so next is Dart. Anyone knows what is Dart and why Dart? Dart सुना है कभी किसी ने? What is Dart? Be Flutter का Bootcamp if you are guys. Yeah, can someone tell? Dart is used for in Flutter for writing code. Okay. Anyone else? Can you repeat एक बार please, Ankit? Okay. Anyone else? A programming language and one of whose framework is Flutter. Okay. Programming lang. Okay. Yeah, so at least we have established that it is a programming language and it is it was apparently made in 2014 or something like that, also by Google. Why? Because everyone was using JavaScript and JavaScript is slow comparatively. Also, Google, being Google, wanted to make a competitor for JavaScript, right? So this other Dart is such a beautiful language that it has goodness of both JavaScript, then easiness of Python, and the functionality of Java, right? So you will see syntax तीनों का mix होके you get Dart. This is very beautiful language, but it is not very popular for certain reasons. So that अगर I told you कि the browser which I'm using, which is Firefox, or the one you are using Safari or Chrome, they all understand JavaScript, right? So to compete with, when Dart came out in 2014, they also made a browser called Dartium, like Chromium. It भी available भी नहीं होगा, but GitHub. Chrome alt Dartium. Yeah. So this is Dartium is a fork of Chromium. Chromium, basically, let's say for now Chrome. They made a browser which worked with Dart directly. So that's why it was faster. But उसने मतलब Dart की adoption नहीं थी, तो eventually the project was dismissed. And you can see the code right now. 2014 में बंद हो गया था. एंड 2014 में ही आई गेस डार्ट आई थी. तो इट वॉज अ वेरी गुड कंपेटिटर, इट स्टिल इज़. बट इवेंचुअली जब किसी ने अडॉप्ट नहीं करा, बिकॉज जावास्क्रिप्ट इज़ वेरी इजी टू राइट, तो दे केम विद अ Google being Google, they came with a framework which used their own language. That's the only point where Dart is being used right now, most probably in Flutter. Also they have started using in servers right now, but yeah, that's the point ki Dart is made by Google. It is a competitor for JavaScript and it is null safe. We'll talk about this null safety etc. Into the video. So you guys can open dartpad.dev. This is also a tool made by Google to write some Dart easily. So if you guys can open it alongside, we can write some Dart there. Okay. Okay. Yeah. So I will not go into syntax because syntax तो सभी languages का almost same रहता है. अगर नहीं भी रहता तो you can obviously understand by googling कि इसमें variable कैसे बनेगा etc etc. तो I assume कि
almost everyone knows ki basics of programming, like making variables, for loops and functions etc, right? So एक आध कुछ बना के दिख लेते हैं, that's it. बाकी ज़्यादा इसमें हम eventually as we go into writing Flutter etc, we will get a hang of it कि हमें कैसे लिखना है. तो you can see this is a string, अब ये सब age, then we have again a string, let's say company, yeah, designation, ठीक है. और क्या होता है कि you can make functions also, तो void then calculate, yeah, we can make a simple function to print maybe. Okay, print करने के लिए you can just do this, ठीक है. then you can make variables int b and then maybe print a plus b, ठीक है. अब this is a similar syntax you use in Python or C, right? In Python you might have also learned about named constructors. There is no named constructor, named constructor बोल रहा हूँ, sorry, named parameters. तो अगर I want to call this function, let's say calculate a comma b or 10 comma 20, you can't define कि अगर मैं यहाँ पे 20 डाल दूँगा और यहाँ 10 डाल दूँगा तो a and b की ऑब्वियसली डेफिनेशन विल चेंज. तो जो 20 है यहाँ पे सेम विल गो हेयर एंड 10 विल गो हेयर, ये हम सबको पता है, ठीक है. बट यू कैन ऑल्सो ऐड नेम्ड पैरामीटर्स हेयर. नेम्ड पैरामीटर्स इन सेंस की you can do add these curly braces and then you can do the same thing यहाँ पे int a and int b, and now you can do something like a colon 20 and b colon 20, or maybe calculate b colon 20 and a colon 20. so you can define की what is b and what is a, ठीक है. अब you can see कि यहाँ कुछ red squigglies होंगी I guess. हाँ, तो you need to tell कि if it is null safe or not. Null safe in the sense कि if the value is not given, something like this, तो what to do then? Because in apps अगर पीछे से कोई वैल्यू नहीं आई है या मेरे डेटाबेस से या कहीं से भी इंटरनेट से वैल्यू नहीं आई है तो आई जस्ट कांट क्रैश द ऐप, ठीक है. आई नीड टू हैंडल इट ग्रेसफुली. तो आई नीड टू ईदर टेल कि इट कैन बी नलेबल, दैट you know data types, right? Int is a data type, string is a data type. There is another data type called, let's say this. So this is nullable int, that this int can also have a null value. So either you have to define कि this is a nullable int like this, or you need to explicitly tell कि this is required. Okay, so now that I have not given the second parameter which is a, you can see कि the parameter a is required and there is no corresponding argument, so I have to give it. बाकी यहाँ प्रिंट करवा लो नॉर्मली a plus b, ठीक है. एंड वही रन वगैरह करके देख लो तो सिंपल सिस्टम है, ठीक है. ये सब हमें इतना तो सभी को आइडिया है, राइट? ठीक है. लेट्स सी आगे क्या है. बेसिक्स. हाँ, सो डायनामिकली वर्सेस स्टैटिकली टाइप्ड. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज डायनामिकली वर्सेस स्टैटिकली टाइप्ड languages, or what are dynamically and statically typed languages? Which languages are dynamically statically typed? Anyone? Okay, very good. And can you also tell ki what are dynamically and statically typed languages? Okay, fine, but he's right that C++ is a statically typed language and Python is dynamically typed. So
what we can so you can see ki if I write dynamic, then write a name, make a variable. Now you can change the type of the variable anytime while running the program. So further, let's assume I assign it in an integer. There is no issues. Okay, but अगर मैं explicitly बता ही दे रहा हूँ कि this is n string, तो now you can't go around and assign it as an integer. ठीक है, so you can see कि a value of type int can't be assigned to variable of type string. ठीक है, so ये सबको clear है what is dynamically and statically typed. Okay, and can also someone tell me what is oops object oriented programming, what are classes, etc. Okay, okay, okay. Can someone give me a thumbs up जिसको नहीं पता what is classes and what is object oriented programming? Harneen, Sujal, Indaveer, Nishat. Okay, so a lot of people don't know object oriented programming right now, but if you know जितना मतलब संकेत ने बताया, it is enough to go ahead right now to consider it as a black box. But I will tell you हल्का फुल्का क्या होता है. अगर किसी को पता है ऑब्वियसली आपको तो पता ही है, अगर नहीं पता है तो देर इज़ नॉट अ नीड टू अंडरस्टैंड इट इन टू डेप्थ कि हम वी गो इन टू रैबिट होल एंड इवेंचुअली फिर हम ऊप्स ही पढ़ने लग जाएंगे. तो वी विल क्विकली मूव ऑन कि ऊप्स क्या होता है. एज यू कैन सी हेयर इन दिस एग्जाम्पल इन दिस स्लाइड कि देर इज़ अ क्लास. सो अगर मैं थोड़ी बुकिश लैंग्वेज यूज़ करूँ, क्लास इज़ अ ब्लू प्रिंट where you can define key, eventually club together some elements and make your own data type, as Sanket told. ठीक है कि let's say there is a data type named string and you want कि instead of making a user with name and age again and again differently, I club it into a single data type, which is let's say user. You can make it somehow like this. Abhi the let's not go into the syntax. I can tell you the syntax etc. But agar you know oops, you can understand the syntax. Else we don't need to go deep into object oriented programming. We can, I guess, continue without it. Can we use default arguments in place of required and nullable? Yeah, you can also use default arguments in place of required and nullable. Okay, so I guess now we can start building a Flutter application, or at least start a Flutter project. It's been almost an hour and we are just discussing theory वगैरह. ठीक है, बोरिंग तो नहीं है ना? किसी को ऐसा बोरिंग लग रहा हो कुछ, और किसी को ऐसे कोई रिकैप वगैरह चाहिए हो कि हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया या ऊपर नीचे हो गया, बता दो यार. नो सर, ओके. ऑल गुड, ऑल गुड. ठीक है. Everyone please, if you want to do it alongside, you can open your terminal and अगर किसी को बेसिक बैश कमांड्स आती हैं ना, what is cd etc in terminal, do you guys know? Who does not know basic bash commands? Kamaljeet. Okay, I will tell side में तपिश. Okay, कि if you are in, okay, can someone tell me कि if you open the terminal where and okay, अब मुझे विंडोज़ का भी आइडिया नहीं है, बट कैन यू टेल मी कि यहाँ पे क्या आ रहा है फर्स्ट लाइन पे?
जिसने नो करा है। फॉर दोज आई गेस हु डोंट नो बैश थोड़ा सा भी, कैन यू डू दिस फॉर मी कि यू कैन मेक एन एम्प्टी फोल्डर वेयर एवर यू लाइक and open it in basically VS Code. An empty folder and open the folder in VS Code. Okay. Can you guys do that कि जिसको bash का idea नहीं है, can you open an empty folder in VS Code? बताओ यार. No, not using terminal, बस open VS Code then open empty folder on it. या Android Studio जो भी यूज़ कर रहे हो आप लोग फ़िलहाल. बट आई वुड प्रेफर कि VS Code यूज़ कर लो बिकॉज राइट नाउ वी डोंट नीड एडवांस टूल्स जो एंड्रॉइड स्टूडियो के पास हैं. वी विल इवेंचुअली गेट इनटू इट. Okay, so let's continue from there. If you can open the terminal in VS Code, do it. If you can't do it, then I guess Command Shift P or Control Shift P. This will open a dialog, and then you can type in Flutter there. You will see a command Flutter create etc. Follow from there. Baki I will write the Flutter command here for other people. You can maybe make a directory into, let's say, Flutter Bootcamp, and then we can create a Flutter project. The simple command is Flutter create, and there are certain parameters जो हम इसमें डाल सकते हैं, but we will discuss everything about them in the last class, the 14th class probably. And you can enter the class name, so let's say day 1 or something like that. Flutter create day 1. Okay, and then open the folder which is day 1 in VS Code. You guys were able to do this, right? कि open a new project in VS Code. ये तो हमने पहले मतलब उसमें गाइड में बताया था, राइट? बताओ ये सब हो गया क्या? ओके ओके, एंड एमुलेटर भी ऑन कर सकते हैं अभी हम, या अगर किसी के पास एमुलेटर नहीं है या इतनी रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स हैं कि एमुलेटर नहीं खुल पा रहा है, तो मैंने किसी को बताया भी था शायद DM में कि यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट योर एंड्रॉयड और आईफोन विया अ वायर. अभी मत करो अगर नहीं है तो. यू कैन इवेंचुअली लुक इनटू इट ऑन गूगल एक्सेट्रा, या फिर मैं बता दूंगा बाद में कि हाउ टू एग्जैक्टली डू इट. बाकी आई एम टर्निंग ऑन द एमुलेटर एंड या. So where is our slides here? ठीक है यार, अभी थोड़ा सिंटेक्स खेलना पड़ेगा हमें थोड़ा सा, एंड थोड़ा फोल्डर स्ट्रक्चर. लेट्स एनालाइज कि क्या हो रहा है. सबने ये प्रोजेक्ट तो बनाया ही होगा पहले भी, राइट? कि जब हमने फ्लटर सेटअप करा था. तो टेल मी कि जो ये anyone has tried to understand कि what these folders are? Anyone knows any folder कि this folder does this or this folder contains these kind of files? Can tell me. Anyone? किसी को कोई फोल्डर के बारे में कोई आइडिया नहीं है क्या अंकित? Okay, so like in tutorial we edited lab file to see changes. Kamaljeet, okay, ठीक है. Right now we don't need to understand पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर और क्या हो रहा है, बिकॉज इवेंचुअली फ्लटर में भी या बाहर भी
डोंट ट्राई टू लर्न एवरीथिंग अभी ही, एज वी गो एंड जैसे हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी उस चीज़ की, देन वी विल गो एंड सर्च कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या करता है, ठीक है. दैट्स द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड एनीथिंग. बाकी right now we have this Android, iOS, Linux and macOS folders. So these are specific files for configuring specific environments like Android, iOS, macOS and Linux, ठीक है. Right now we don't need to touch them, Android, iOS, macOS and Linux, web, Windows also. Then we have test folder and lib folder. So lib means library and here you will write all the code, जैसे हमने उस दिन edit भी करा था. तो main.dat, दिस इज़ द टेम्पलेट जिसको जो हमने देखा था उस दिन, विच क्रिएट्स एन एम्प्टी ऐप जिसमें देयर इज़ अ कैलकुलेटर बटन, नॉट काउंटर बटन, राइट. तो काउंटर ऐप, बेसिक काउंटर ऐप, ठीक है. यहाँ पे ही हम सारा कोड लिखेंगे इवेंचुअली, और इसी फोल्डर के अंदर बाकी फाइल्स जो हम बनाएंगे वो भी यहीं रखेंगे. ये हमने डिस्कस कर लिए. देन वी हैव टेस्ट फाइल. तो ये भी एक डमी टेस्ट फाइल है. सो व्हाट दिस डज इज, अभी भी ये भी हमें इवेंचुअली ज़रूरत नहीं है, वी विल इवेंचुअली राइट व्हेन थोड़ा हमें हमारे कोड बेस को अच्छा करना होगा. बट द पॉइंट इज़ कि लेट्स से देयर आर 3 स्क्रीन्स, कि अगर आप पहली स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे गए या दूसरी स्क्रीन से तीसरी स्क्रीन पे गए, तो यहाँ तक ऐप चल रहा था ओके, एंड कल को आपने कोई चौथी स्क्रीन बना दी, एंड लेट्स से आप दूसरी स्क्रीन से चौथी स्क्रीन पे भी जा सकते हो. 4 स्क्रीन हो गई. अब लेट्स अज्यूम कि मैंने चौथी स्क्रीन बना दी एंड फॉर सम रीज़न दूसरी से तीसरी का फ्लो टूट गया फॉर मेकिंग दूसरी से चौथी का फ्लो, सम ऑड रीज़न, ठीक है. तो यू नीड टू, यू कैन राइट सर्टेन टेस्ट्स कि क्या हो रहा है, कि मतलब अगर मैं बटन क्लिक करूं और सेकंड स्क्रीन से थर्ड स्क्रीन पे चला जाए, दिस कैन बी अ टेस्ट. ये मैं टेस्ट बना के रख लेता हूँ कि अगर उसके बाद मैं फोर्थ स्क्रीन ऐड करूँगा तो मैं प्रीवियस टेस्ट्स ला के देखूँगा जो मैंने बना के रखे थे, कि वो सारे पास हो रहे हैं या नहीं. तो अगर वो सारे पास हो रहे हैं, विच मीन्स कि मैंने जो फोर्थ स्क्रीन बनाई है दिस इज़ ऑल राइट, ठीक है. इसमें कोई इशू नहीं है, जो मैंने फोर्थ स्क्रीन का लिंकिंग करी है इसमें कोई इशू नहीं है. गॉट इट. अगर ये किसी को नहीं समझ में आया तो दिस इज़ टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, हमें अभी ज़रूरत नहीं है. इवेंचुअली मैंने एक YC फॉर्म में काम करा था विच इज़ स्टैक वेल्थ. दिस इज़ द वेबसाइट, दिस इज़ बैक्ड बाय YC. इनका ऐप भी है, ऑब्वियसली फ्लटर ऐप ही है. तो दे ऑल्सो डोंट डू दिस. तो हमें इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट पे. बट जस्ट टू गेट अ हैंग ऑफ इट मैंने हल्का हल्का बता दिया. बाकी गेट इग्नोर अभी हम छोड़ सकते हैं. एनालिसिस डॉट ऑप्शन, पबस्पक डॉट यामल, ये देख लो थोड़ी थोड़ी. तो अगर डार्ट पैड पर जाएँ वापस, कैन यू सी कि यहाँ पे एक रेड स्क्विगली आ रही है, या यहाँ पे कौन सी येलो स्क्विगली आ रही है. तो कैन एनीवन टेल मी हाउ दीज वर्क. अगर किसी को आइडिया है, नहीं पता है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से बना के, कि मेरे हिसाब से ऐसा चलता हो सकता है, या अगर मैं बनाता तो शायद ऐसे ट्राई करता इसको करने का. फर्स्ट प्रिंसिपल से कोई सोच पा रहा हो कि मतलब हाउ द रेड लाइंस कम इन योर IDE तो पता ना सबको. एनीवन? हाँ, तो कैन समवन टेल मी कि हाउ फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल्स यू कैन थिंक कि अगर मुझे एक IDE के अंदर सिंपल टेक्स्ट पड़ा है, मुझे अगर ये एरर्स डिटेक्ट करने हैं या रेड लाइंस डालनी है, तो हाउ कैन यू थिंक ऑफ इट कि फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स. ओके, मैं हल्का सा हिंट दे देता हूँ कि देयर इज़ अ स्टैटिक एनालाइज़र जो हर टाइम आपके कोड को एनालाइज कर रहा होता है जैसे ही आपको चेंज करते हो. व्हाट इज़ फर्स्ट प्रिंसिपल? फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब जो आपके दिमाग में पहले ही सोचते आ रहा है कि अच्छा ये दिस इज़ द फर्स्ट अप्रोच जो मेरे दिमाग में आ रही है इसको सॉल्व करने की. ओके, तो देयर इज़ अ स्टैटिक एनालाइज. क्या? हाँ, तो रन करके तो आप इवेंचुअली देखोगे ना, जब मैंने 100 लाइन का कोड लिख दिया, फिर आपने रन करा, फिर 10 एरर्स आए. बट यहाँ पे आपको बिना रन करे ही यू आर ऑलरेडी सीइंग कि अच्छा दिस इज़ अ वेरी कॉमन एरर, इसको तो सॉल्व कर ही लो. जो इवेंचुअली आएंगे वो देखेंगे बाद में. तो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ IDE. फिर हम तो नोट पैड पर भी लिख ही सकते हैं. तो देयर इज़ अ स्टैटिक एनालाइज़र विच कॉन्टीन्यूसली एनालाइजेस योर कोड जो आप चेंज कर रहे हो, एंड उसके अंदर बहुत स्टैंडर्ड बेसिक रूल्स होते हैं
जिसके बेसिस पे इट कैन एनालाइज कि जैसे यू कैन ऑब्वियसली सी कि भाई ये दिस इज़ अ एंड ऑफ अ वेरिएबल बनाने का एंडिंग है। अब इसमें मैं सेमी कॉलन नहीं लगाऊंगा, तो आई कैन ऑब्वियसली सी कि देर इज़ नो सेमी कॉलन, एंड देखो इसमें इंस्टेंटली पॉप हुआ ना नीचे कि एक्सपेक्टेड टू फाइंड सेमी कॉलन। बट अब मैं पहले रन करूँ, फिर ये कंपाइल हो, बाइनरी बने, जनरेट हो, फिर मुझे आउटपुट आए, उससे बेटर कि वी कैन बेसिक एरर्स तो वी कैन स्टैटिकली एनालाइज कि क्या हो रहा है। ठीक है, सो देयर इज़ अ स्टैटिक एनालाइज़र जो ऑलवेज हमारा कोड देखता रहता है, एंड बेस्ड ऑन दैट इट गिव्स यू सजेशंस। सो जनरली हम जब प्रोडक्शन में जाते हैं, ऐप्स फाइनली डिप्लॉय करते हैं, वी टेंड टू डू दिस कि हम प्रिंट स्टेटमेंट्स नहीं लिखते फालतू में। दिस इज़ फॉर डीबगिंग पर्पसेस कि प्रिंट स्टेटमेंट्स वी डोंट ट्राई टू राइट इन प्रोडक्शन। सो जैसे अभी देखो बाकी सारा कोड वॉज परफेक्ट, यहाँ पे कोई एरर नहीं था जो ऑलरेडी जनरेटेड कोड था, बट व्हेन आई रोट प्रिंट समथिंग यू कैन सी कि क्या कह रहा है, डोंट इन्वोक प्रिंट इन प्रोडक्शन कोड, ट्राई यूजिंग अ लॉगिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, एंड यहाँ के लिखा है डाट अवॉइड प्रिंट। सो देर इज़ अ इंस्ट्रक्शन इन द स्टैटिक एनालाइजर जो आपका कोड एनालाइज कर रहा है हमेशा, दैट व्हेन समवन राइट्स प्रिंट वी नीड टू अवॉइड प्रिंट। ठीक है, अब दिस इज़ अ फाइल एनालिसिस ऑप्शंस डॉट यामल कि जब आपका कोड एनालाइज हो रहा है तो व्हाट काइंड ऑफ रूल्स यू वांट टू इन्फोर्स। तो देखो लिंटर देन रूल्स इन यहाँ पे यू कैन नाउ से कि अवॉइड प्रिंट फॉल्स। तो यहाँ पे अभी क्या आ रहा है देखो, द एरर जो यहाँ पे आ रहा था, मतलब जो रेड लाइन ब्लू लाइन आ रही थी, इट गॉन अवे है ना, कि बिकॉज मैंने यहाँ पे आई टोल्ड इट कि डोंट, इफ़ प्रिंट स्टेटमेंट आ रही है तो कोई इशू नहीं है, बट अगर मैं इसको अभी ट्रू कर दूँ या मैं रिमूव कर दूँ इस लाइन को, यू विल सी कि अगेन इसमें देयर इज़ दैट इशू। ठीक है, तो सबको ये समझ में आ गया वैसे बेसिक स्टैटिक एनालाइजर या लिंटिंग वगैरह जो भी बताया मैंने। ठीक है, तो इसको भी हम जनरली टच नहीं करेंगे फ़िलहाल, हमारे बूट कैंप में तो नहीं करेंगे, बट इवेंचुअली जब प्रोडक्शन सिस्टम्स में मल्टीपल टीम्स में हम काम करते हैं तो वी इवेंचुअली यूज, जैसे यहाँ पे लिखा है प्रेफर सिंगल कोट्स। तो अगर आप यूके वगैरह की टीम्स के साथ बात करोगे तो दे यूजुअली यूज़ सिंगल कोट्स इंस्टेड ऑफ डबल कोट्स, बट इंडियन टीम्स जनरली यूज़ डबल कोट्स। ऐसा कुछ वो है नहीं है कि अब कहीं सिंगल कर रहे हो डबल कर रहे हो तो कोड भी से इतना अच्छा नहीं लगता है। दैट्स वाई इन्फोर्स दिस रूल कि या तो सिंगल कर लो या डबल कर लो, बाकी यू कैन यूज़ दोनों कि कभी सिंगल या कभी डबल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो टू मेंटेन कोड कंसिस्टेंसी एक्सेट्रा, या फिर दिस इज़ द स्टैटिक एनालाइजर, उसके हम रूल्स एक्सेट्रा डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट इन दिस इज़ पबस्पेक डॉट यामल। इसका भी हमें बहुत काम आएगा इवेंचुअली इस बूट कैंप में तो एटलीस्ट, वेयर अभी यहाँ पे इफ़ यू कैन सी कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, नेम डे 1, डिस्क्रिप्शन अ न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट, वर्जन, इन्वायरमेंट। कैन समवन थिंक कि व्हाट इज़ दिस फाइल और ये क्या करती है, किसी ने पहले पढ़ा हो या इवेंचुअली देखा हो जब यू आर सेटिंग अप, एनीवन? ओके, एनीवन एल्स? एंड यहाँ पे इफ़ यू कैन सी कि दोनों फाइल्स की एक्सटेंशन है YAML। तो कैन एनीवन टेल मी कि इफ़ यू नो व्हाट इज़ YAML, या किसी ने सुना हो, पहले कभी काम करा हो या पहले देखी हो कभी ये फाइल, या पहली बार देख रहा है, कौन ये फाइल पहली बार देख रहा है YAML एक्सटेंशन के साथ? इट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट। ओके ओके, लीन कमलजीत, ओके कूल। ठीक है, तो लॉट ऑफ पीपल आर सीइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, वो यामल फाइल। तो ओके, सो ये बताओ किसी ने कभी जेसन फाइल देखी है? या जेसन फाइल ऑलमोस्ट सबने देखी है ना? तो दोनों सेम ही काम करती हैं ऑलमोस्ट। ये भी इट ऑल्सो वर्क्स लाइक जेसन, बट इट वर्क्स ऑन इंटेंडेशन इंस्टेड ऑफ ब्रैकेट्स। तो जैसे पाइथन में एवरीथिंग वर्क्स विद इंटेंडेशंस, दिस ऑल्सो वर्क्स विद इंटेंडेशंस। बाकी इट वॉज मेड एज अ जोक फ्रॉम वट आई रिमेंबर, एंड इट्स फुल फॉर्म इज YAML। हाँ, YAML ain't a markup language।
तो इट इज़ अ रिकर्सिव फुल फॉर्म कि यामल इंटा मार्कअप लैंग्वेज, यामल की फुल फॉर्म है यामल इंटा मार्कअप लैंग्वेज। नेवर माइंड, ये सब एक्स्ट्रा हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। बट द पॉइंट इज इसमें एज सूजल सेड कि इट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट एक्सेट्रा, एंड इवेंचुअली अगर हमें डिपेंडेंसीज ऐड करनी होंगी तो वी विल ऐड फ्रॉम हेयर। वट आर डिपेंडेंसीज वो भी हम डिस्कस कर लेंगे डिटेल से, फर्स्ट प्रिंसिपल से, उसका कोई इशू नहीं है। बट जितनी अभी हमें इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ इनफ टू प्रोसीड विद द मेन डॉट डाट फाइल। तो लेट्स डू दिस कि एटलीस्ट रन दिस फाइल, ठीक है। तो इधर तो अच्छा, मैंने शायद ये बताया नहीं था गाइड में, टू इंस्टॉल एक्सटेंशंस हेयर लाइक फ्लटर एंड डार्ट। क्या किसी ने करी है इंस्टॉल बाय डिफ़ॉल्ट? कर ली है ना? ओके गुड। तो अगर किसी ने नहीं करी है तो प्लीज़ इंस्टॉल द फ्लटर वाली एक्सटेंशन एंड लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। तो इधर यू विल हैव बटन्स वगैरह हेयर टू डायरेक्टली रन, ओके, directly launch this process into the emulator, but we will use a terminal because वो भी मैं किसी दिन बताऊंगा कि why we need to use terminal always, but this is the command to run this flutter run, and I guess this is enough to run your on your emulator. For me, I have to figure out the device which is connected right now. Which is this one, emulator, which is opened here, ये वाला। तो we will do यहाँ से, ठीक है, रुको, ठीक है, मैं क्योड फ्लटर रन -t, ठीक है, ओके। सो वेट करते हैं इसका, मीनवाइल दिस ओपन्स, ठीक है। सो दिस इज़ द बेसिक स्टैंडर्ड ऐप, यू विल click one here and it increases the counter. How this works ये हम next class में discuss करेंगे, but now we can understand basic syntax वगैरह थोड़ा बहुत कि how things are working, है ना। Let's remove everything यहाँ से, let's remove everything except this, and if you have an extension installed, just write stl or something like that to get this abbreviation. कैन एवरीवन इतना कर सकते हैं क्या सभी? ऑल्सो अगर तो आप यू आर यूजिंग एंड्रॉयड स्टूडियो एक्सेट्रा या तो यहाँ पे आई गेस 2-3 बटन्स होंगे टू रिफ्रेश द एप्लीकेशन, बट इफ़ यू आर नॉट यूजिंग एंड यूजिंग टर्मिनल लाइक मी, you can press R or capital R here, which is a hot reload and hot restart. We will discuss about hot reload and hot restart and how they work in detail in the next video. Next session. And basically, yeah, so if you want to see the changes, press small r here, and this is what I see. This is an empty app, and if anyone has issue right now, till now, please tell me. या किसने कर लिया है, इतना कर लिया है? एनीवन? ओके, सर कैन यू प्लीज़ रिपीट व्हाट टू डू? कैन यू टेल मी वेयर आर यू स्टक? कि मैंने क्या करा मैं बता देता हूँ। मैंने एक फ्लटर प्रोजेक्ट स्टार्ट करा, डू हाउ एवर यू कैन, कि जैसे आपने उसमें पहले करा होगा, create a Flutter project, open it, then I told you about the files and the file structure, how things work in this file structure, how we are going to write code in our lib dot main dot dart, ठीक है। और जो यहाँ पे डमी कोड था मैंने उसको रन करा था बाय लॉन्चिंग माय एमुलेटर, एंड यू गाइज नो कि हाउ टू लॉन्च द एमुलेटर। बाकी अगर नहीं हो रहा है तो लॉन्च इट ऑन क्रोम एक्सेट्रा या फिर अपने फ़ोन पे, and then I removed all the code यहाँ तक, and I wrote stles. This will automatically give you an autocomplete, and I changed the name to my app.
That's it. Okay, good. And on the terminal, या तो if you are using some ID, तो यहाँ पे buttons होंगे to refresh and restart. But for the people who are using terminal, you need to press small r and capital R. For now small r, but I will explain you in the next session ki how these work. Right now you just need to press small r in the terminal. Okay, let's see the slides. हाँ, ओके, यहाँ तक सही है ना सारा कुछ? ओके, हाँ. So anyone who knows what is a tree also normally and also in data structures or generally in computer science, can someone explain me about trees? थोड़ा बहुत, whatever you know, whatever your intuition is about trees. Anyone? Okay, which is similar to infix type data structure. Okay, like we do prefix and postfix. Okay. Okay, I am assuming कि almost everyone knows what is a tree. You don't need to understand how tree works, how to add or delete data, but this is obviously something like a tree. It is a tree. So there is a root node from where everything originates. Then you go down and you have the childrens, right? So each of them can have multiple childrens. Right in this image, I have depicted at most 2 childrens, but there can be multiple childrens for each node, right? So this is how everything will work in our Flutter application, right? So we will make trees. We won't make trees. Flutter will make trees for us. We will write in a certain way. It will look like a tree to you already. Okay. So I'm writing something. Consider it as a black box right now. If you don't know, no issues. But let's remove this. Let's also remove this. Okay, can you see something कि बाकी जो ये सारा कुछ है स्टेटलेस क्या लिखा है, ओवरराइड, बिल्ड, डोंट कंसिडर इसको अभी कुछ भी. treat it as a black box. If you know object oriented programming and inheritance etc, you can automatically understand it, and if you don't know then you don't need to understand it. Eventually you will figure it out जब you will eventually learn object oriented programming. बट बस अभी फ़िलहाल ही समझ लो कि वी नीड टू राइट कोड हेयर. वट इज़ द स्टेटलेस एक्सेट्रा, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन द नेक्स्ट सेशन. बट राइट नाउ वी जस्ट नीड टू राइट कोड हेयर. इसमें मैंने 3 चीज़ें लिखी हैं: मटीरियल ऐप, देन स्काफोल्ड, देन टेक्स्ट. इनिशियली थोड़ा इट वुड बी हार्ड टू डाइजेस्ट, बट द पॉइंट इज़ कि इट इज़ वेरी सिंपल कि दिस इज़ अ ट्री, but in a sense that this is the root node, which is my material app which I wrote. Then it has a children, it has a child which is named scaffold for some reason, which we will discuss. And then the next is a text. ठीक है, तो this is a parent, child. ठीक है. We will our tree will eventually look like something like this eventually, but right now this is a single straight tree. ठीक है, skewed tree. Material app, scaffold, text. good. यहाँ तक कोई इशू नहीं है ना. ये क्या होते हैं मटेरियल ऐप एंड स्काफोल्ड, आई विल टेल यू. बट हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, और वो हमने समहाउ लिख लिया. ये दोनों क्या हैं, वी विल फिगर इट आउट, बट हमने टेक्स्ट लिख लिया है ना यहाँ पे. अब अगर मैं यहाँ पे स्मॉल आर प्रेस करूँगा तो यू कैन सी कि यू कैन सी सम टेक्स्ट हेयर जो यहाँ बहुत ऊपर है ना. तो इफ़ कैन यू गाइस सी यहाँ पे हेलो फ्लटर लिखा हुआ है. यहाँ पे
32 लोग हैं, 2-3 ही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. कैन यू गाइस सी कि यहाँ पे मतलब हेलो वर्ल्ड लिखा, हेलो फ्लटर लिखा हुआ है एंड हाउ इट केम यहाँ पे. ठीक है, कूल कूल. तो लेट्स चेंज इट थोड़ा सा. अब जो ये टेक्स्ट है, लेट्स रिमूव दिस. लेट्स राइट सेंटर हेयर. नाउ लेट्स राइट चाइल्ड एंड द टेक्स्ट हेयर. ठीक है, अब आई चेंज द स्ट्रक्चर थोड़ा सा कि यहाँ पे ये टेक्स्ट था, मूव्ड इट डाउन एंड यहाँ पे वी इंसर्टेड अनदर नोड विच इज़ सेंटर. ठीक है, ओके. तो इफ़ आई प्रेस स्मॉलर हेयर देन यू कैन सी कि नाउ इट इज़ सेंटर्ड. ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि क्या हो रहा है. दिस इज़ द पेरेंट, उसका चाइल्ड है स्काफोल्ड, उसका चाइल्ड है सेंटर, उसका चाइल्ड है टेक्स्ट. गुड, यहाँ तक. अब यहाँ से यू कैन सी थोड़ा थोड़ा कि यू आर गेटिंग द फील्ड कि यहाँ चाइल्ड लिखा हुआ है, मतलब ये पेरेंट है. अब ये मांग रहा है इसका चाइल्ड एंड दिस इज़ टेक्स्ट. एंड यू कैन ऑल्सो सी कि दीज आर नेम्ड पैरामीटर्स जो हमने यहाँ डिस्कस करे थे. तो अगर मैं यहाँ पे इसका नाम चाइल्ड रख दूँ, इसका नाम मैं सेंटर रख दूँ, है ना, तो अब मैं सिमिलर चीज़ कर सकता हूँ. इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, प्रिंट चाइल्ड कर देते हैं बस. तो अब मैं एक सिमिलर चीज़ करता हूँ, सेंटर, एंड यहाँ पे लिख सकता हूँ चाइल्ड. अब यहाँ पे मैं फ़िलहाल के लिए एक इंट दूंगा, बट हमने यहाँ पे इंट नहीं दिया उस वाले में. हमने यहाँ पे एक और फंक्शन दिया है काइंड ऑफ. दिस इज़ नॉट फंक्शन एग्जैक्टली, बट लेट्स अज्यूम कि मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ, वाइड टेक्स्ट, और ये लेता है एक रिक्वायर्ड स्ट्रिंग नेम, और यहाँ पे प्रिंट कर दूँगा नेम. तो इंस्टेड मैं यहाँ पे इंटीजर लूँ, मैं ये फंक्शन ले लूँगा, फिर यहाँ पे मैं फंक्शन पास कर दूँगा ये वाला, और यहाँ पे इस फंक्शन को मैं स्ट्रिंग पास कर दूँगा. तो ये सिंटेक्स समझ में आ रहा है सबको कि क्या हो रहा है यहाँ पे. थोड़ा थोड़ा ये एग्जैक्टली नहीं हो रहा है यहाँ पे, बट इट इज़ जस्ट एन इंट्यूशन कि ऐसा कुछ हम कर सकते हैं. ठीक है, ओके. अब लेट्स डिस्कस आगे स्लाइड में क्या है. ओके, तो एक और चीज़ है कि एज यू कैन सी कि दिस इज़ अ विजेट, दिस इज़ समथिंग, दिस इज़ काइंड ऑफ अ नोड. हम इस नोड को विजेट कह रहे हैं, दैट्स इट. ठीक है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट. अब हमने एक ट्री तो देख ही लिया कि जो ये बना हुआ है, या इसको हम और कॉम्प्लेक्स करेंगे. विजेट ट्री फ्लटर इमेजेस. यू कैन सी यहाँ पे कि दिस इज़ अ विजेट ट्री, तो फिर एक जेनरिक सा है, बट दिस इज़ समथिंग कि विच इज़ थोड़ा डिफरेंट, कि कंटेनर है, इसके अंदर एक रो है, उस रो के अंदर 3 कॉलम्स हैं. दिस इज़ समथिंग विच वी विल इवेंचुअली मेक. ठीक है, एंड दिस इज़ समथिंग विच वी विल राइट हेयर इन दिस कोड. ठीक है, बट फ्लटर के अंदर व्हेन यू राइट दिस सर्टेन कोड, दे आर 3 डिफरेंट ट्रीज विच आर बीइंग मेंटेन्ड. ठीक है, the 3 trees are, one is the widget tree, then is element tree and render object tree. ठीक है, these are 3 different trees which exist, but हमें लेना देना है सिर्फ widget tree से. पीछे क्या होगा वो फ्लटर हैंडल करेगा, बट जस्ट टू नो कि क्या होता है, वी आर डूइंग दिस यहाँ पे. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि क्या होता है. ठीक है, तो विजेट ट्री तो हमने देख ही लिया कि रूट विजेट है. रूट विजेट कौन सी है यहाँ पे? कैन समवन टेल मी कि व्हाट इज़ द रूट विजेट इन अवर केस, जो मैंने अभी यहाँ लिखी या मैंने इलस्ट्रेट करी वहाँ पे. हाँ, मटेरियल ऐप. ओके सुजल, ठीक है. तो मटेरियल ऐप इज़ द रूट विजेट. फिर उसके बाद देयर आर सर्टेन विजेट्स डाउन द लाइन. दिस इज़ द विजेट ट्री विच वी रोट. अब दिस इज़ इम्यूटेबल एंड लाइट वेट एज रिटन हेयर. इम्यूटेबल कैन इम्यूटेबल तो आई गेस सबको पता ही होगा, बिकॉज वी कांट म्यूटेट, वी कांट चेंज थिंग्स हेयर. बट यू विल सी कि जो हमने पहला स्टार्टिंग मैप बनाया था, व्हेन वी प्रेस द बटन, द काउंटर चेंज फ्रॉम 1 to 2, 2 to 3. सो इट वॉज म्यूटेटिंग. हाउ इट वॉज म्यूटेटिंग? हालांकि मैंने बताया इट इज़ नॉट म्यूटेबल. द पॉइंट इज़ कि यू डोंट चेंज द वैल्यू
इन दिस कि 1 को मैंने बदल के 2 कर दिया, व्हाट आई डू इज़ कि मैं 1 को हटा देता हूँ, फिर एक नई नोड बनाता हूँ 2 एंड देन इंसर्ट इट. ठीक है, खुशी क्रिएट्स न्यू विजेट एवरी टाइम, आई गेस, या राइट. सो इट क्रिएट्स अ न्यू विजेट एवरी टाइम एंड इंसर्ट्स इट बैक बाय रिमूविंग द ओल्ड विजेट. तो अगर मुझे यहाँ पे टेक्स्ट है और मुझे टेक्स्ट को डायनामिकली चेंज करना है फ्रॉम लेट्स से 10 to 11, तो आई विल गो मेक अ न्यू टेक्स्ट विच इज़ 11, देन डिलीट दिस टेक्स्ट विच इज़ जो मेरा पुराना टेक्स्ट है, फिर मैं इसको यहाँ पॉइंट करा दूंगा नए टेक्स्ट पे. तो दिस इज़ इम्यूटेबल एंड दिस इज़ वेरी चीप टू डू. तो बहुत ये सारा काम बहुत इट इज़ वेरी easy to do. That's how you can like render thousands of widgets in a single frame in my single app. ठीक है, अब this is the one tree. Second is element tree. This is something which we will understand in detail in next sessions. What is element tree, what is stateless and stateful elements. But for each element which we have created here, जैसे यहाँ पर text है, कुछ padding है, कुछ dog name etc., जो भी widgets हैं, there is a corresponding element tree which is being maintained, तो which has mostly two elements, stateless or stateful. तो stateless means that you can't change it, stateful means you can't change it. For today's class eventually we will understand कि how these two work. ठीक है, but there is an element tree which looks at the diffing in the sense differences कि पुराने फ्रेम में और नए फ्रेम में क्या फ़र्क है. तो पुराने फ्रेम में 10 था, नए फ्रेम में क्या मुझे 11 करना है या 10 ही रखना है. दिस इज़ मेंटेन्ड बाय एलिमेंट ट्री. देन वी हैव अ रेंडर ऑब्जेक्ट ट्री. दिस इज़ इवन लोअर लेयर जो मेंटेन करी जाती है बाय फ्लटर. हमें इससे कोई लेना देना नहीं है. द रेंडर ऑब्जेक्ट एक्चुअली टॉक्स टू GPU जैसे लिखा हुआ है, तो इट कैलकुलेट्स कि कौन सी विड्थ, कौन से पिक्सल्स क्या करने हैं. लेट्स से बटन बनाना है तो इसका साइज़ इतना होगा, तो वेयर इट विल बी प्लेस्ड इन द स्क्रीन. देन इट इवेंचुअली पासेस इट टू स्किया और इम्पेलर, वट एवर यू आर यूजिंग राइट नाउ. ठीक है, तो दिस इज़ द एक्सपेंसिव स्टफ़ जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था कि नाउ यू नीड टू कैलकुलेट कि अच्छा सर्कल बनाना है तो यू नीड टू डू सर्टन कैलकुलेशन एक्सेट्रा फॉर मेकिंग दैट सर्कल. ठीक है, दिस इज़ समथिंग विच वी अंडरस्टूड कि ये ट्री जो हम लिख रहे हैं, this is one tree, there are two other trees, element tree and render object tree. Render object tree, so we don't need to talk about that. Element tree we will understand in detail in the next session. And next is the coordinate system. तो can someone guess the how the coordinates work in the screen जो यहाँ पे है, जो मेरे मोबाइल की स्क्रीन है. how the coordinates works. Coordinates in the sense कि अगर मैं option tab, अगर I generally split the screen into like मतलब एक ग्राफ बनाते हैं जनरली हम ऐसे, और यहाँ पे देयर इज़ अ 0 0 0 है ना सेंटर में, राइट. DPI, नो नॉट DPI, बट हाउ द लेट्स से अगर मुझे विजेट को पोजीशन करना है तो वेयर इट इज़ प्लेस्ड राइट नाउ, द बॉटम लेफ्ट इज 0, नो, द टॉप लेफ्ट इज़ 0 0. फ्रॉम देयर वी प्रोग्रेस. तो बेसिकली जो आपका नॉर्मल ग्राफ होता है ये वाला, दिस इज़ ये वाला जो इसका सेंटर है, ओरिजिन है, दिस इज़ शिफ्टेड हेयर. फ्रॉम देयर यू कैन पॉजिटिव x एंड नेगेटिव y. दैट्स हाउ यू कैन डू. ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम इज़ वेरी सिंपल, जस्ट इट इज़ शिफ्टेड थोड़ा सा ऊपर एट द कॉर्नर टॉप लेफ्ट. देन लेट्स टॉक अबाउट मटीरियल ऐप विच वी वर टॉकिंग अबाउट हेयर. तो अभी के लिए we don't need to understand what is material app because it handles complex things. एक मिनट, हाँ, so it handles complex things like navigation from going page A to page B. Then also theming. तो अगर theming in the sense कि let's say if I open this website और let's go to इनका app. ठीक है, तो these almost all the UIs are made by me यहाँ पे. But the point is कि you can see कि the accent color of this app. What is the accent color of this app? Do you guys understand accent color? It is kind of tealish, right? Green teal color. You will find it everywhere in the app. जैसे ये वाला color है, you will find this color everywhere in the app. This is the accent color of the app. ठीक है, अब अगर आप पहले आपने ये वाला कार्ड बनाया जो यहाँ पे है, जो ये वाला कार्ड है,
तो आपने ये वाला कार्ड बनाया पूरा, नेक्स्ट टाइम यू आर राइटिंग सम अनदर कार्ड फॉर अनदर स्क्रीन, तो आप बार बार यू विल नॉट गो अराउंड एंड फाइंड दिस कलर कि इसका कलर क्या है, और बार बार मैं उस कार्ड में डालता रहूँ कि भाई ये कलर, ये वाला कार्ड ये भी इस कलर का होगा, ये भी इस कलर का होगा। तो जनरली पीपल सेट अ ग्लोबल थीम कि मेरे ऐप की थीम कैसी है, मतलब मेरे ऐप में जो अगर मैं कोई भी कार्ड बनाऊँ, रैंडम कार्ड बनाऊँ या रैंडम कंटेनर बनाऊँ, बाय डिफ़ॉल्ट उसका बॉर्डर रेडियस 10 हो, जैसे यहाँ पे लेट्स एज्यूम 10 है, ठीक है। या फिर अगर इसका लेट्स एज्यूम कि इसका कलर ये टील कलर हो, एक्सेट्रा, ठीक है। तो यू जनरली डिफाइन द ग्लोबल थीम ऑफ एन एप्लीकेशन, जो हम इवेंचुअली करेंगे, अभी नहीं, बट या फिर लोकलाइजेशन इन द सेंस कि इफ़ यू आर मेकिंग एन एप्लीकेशन तो इट रिक्वायर्स टू बी मतलब अगर वही मतलब मल्टीपल लैंग्वेजेस हैंडल करनी है आपको, तो इट शुड बी इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। तो देयर इज़ एन आप तो this was kind of an hackathon project. So this is a multilingual app in 4 to 5 languages. So to handle this, so as you can see कि यहाँ पे initially it shows 2 languages, eventually it is in 4-5 languages, but yeah, तो you can understand कि अगर आपको ये हैंडल करना है तो आप ऐसा तो लिखोगे नहीं हर बार। लेट्स से आपको यहाँ कैरेट लिखना था, ठीक है, कैरेट, तो यू विल गो अराउंड कि इफ़ द लैंग्वेज इन माई स्टोरेज इज़ हिंदी देन राइट कैरेट, एल्स राइट गाजर, हर बार तो ये नहीं लिखोगे। तो देर इज़ एन इवेंचुअल स्विच एट द टॉप कि अगर मेरी लैंग्वेज इंग्लिश है तो ऑटोमेटिकली कैरेट लिखना, नहीं तो जो अदर चीज़ है मतलब गाजर जब लिखना होगा तो आई विल टेल यू। दिस इज़ ऑल्सो हैंडल बाय मटीरियल ऐप, अभी हमें कोई लेना देना नहीं है इसका। और या जैसे यहाँ लिखा है एडवांस फॉर करंट कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट इज़ स्काफोल्ड। तो इफ़ यू गो टू समथिंग लाइक, या फिर इसी ऐप में देख लेते हैं, या जोमेटो खोल लो, कैन यू सी कि नीचे एक बार है यहाँ पे टू नेविगेट ऑन टू डिफरेंट स्क्रीन्स, या फिर यू कैन ऑल्सो सी कि टॉप पे भी एक बार है, या फिर इस ऐप में भी यू कैन सी कि टॉप पे भी एक बार है ये वाली, या फिर बॉटम पे भी एक बार है। ऑलमोस्ट हर एक स्क्रीन में ऐसा है कि टॉप पे देखो ये वाली एक बार है, और यहाँ पे बॉटम पे नहीं है बट यहाँ पे बॉटम पे है, या फिर एक फ्लोटिंग बटन है ये वाला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो एवरीवन कैन सी कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मुझे ऑलमोस्ट कॉमन दिख रहे हैं हर एक ऐप में और हर एक स्क्रीन में। जैसे कि ऐप बार हो गया, बॉटम नेविगेशन बार, फ्लोटिंग बटन्स एक्सेट्रा, ठीक है। यू एवरीवन कैन सी कि वो कॉमन है। तो स्काफोल्ड ऑटोमेटिकली ब्रिंग्स दीज थिंग्स फॉर यू। या तो आप ऐसा करो कि गो एंड इंजीनियर एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, कि मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने आप लिखूँगा ऐप बार। तो फिर आप अपने आप ऐप बार लिखते रहो हर एक स्क्रीन में, अपने आप बॉटम नेविगेशन बार लिखते रहो, जो कॉमन चीज़ें हैं। बट स्काफोल्ड मैनेजेस इट फॉर यू एंड इट गिव्स दीज थिंग्स फॉर यू। ड्रॉअर बहुत जगह देखी होगी, ड्रॉअर जो आप साइड में हैमबर्गर मेन्यू देखते हो, ड्रॉअर एप्स इन एप्स, ये वाली ड्रॉअर। कैन एनीवन टेल मी कि कोई ऐप जिसमें यू हैव सीन समथिंग लाइक दिस, एनी ऐप? किसमें? जीमेल, एनी एल्स ऐप किसी और ने? डोमिनोज ऐप, ओके कूल। तो द पॉइंट वॉज टू से कि ऑलमोस्ट एवरी ऐप हैज़ सर्टेन थिंग्स जो हमें चाहिए ही चाहिए होती हैं। यू डोंट गो एंड इंजीनियर दैम योर सेल्फ फ्रॉम स्क्रैच। तो दैट इज़ वट स्काफोल्ड प्रोवाइड्स यू। सो एज यू कैन सी कि एक पैरामीटर तो बॉडी है। अब इसमें जैसे आई टोल्ड यू कि ऐप बार इज़ अनदर पैरामीटर। तो ऐप बार में क्या डालूंगा, ऑब्वियसली ऐप बार डालूंगा। तो सिमिलरली मैंने एक ऐप बार डाल दी। अब लेट्स रिफ्रेश द एप्लीकेशन एंड सी की वट आर द रिजल्ट्स। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है बिकॉज मैंने ऐप बार के अंदर कुछ नहीं बताया। तो लेट्स गो एंड चेंज इट्स बैकग्राउंड कलर, कलर्स डॉट रेड, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। कैन यू गाइस सी कि ऐप बार बैकग्राउंड कलर कलर्स डॉट रेड, एंड नाउ इट माइट ओके रेड कलर हो गया, ठीक है। अब सिमिलरली इसमें मुझे टेक्स्ट डालना है, तो आई विल राइट टाइटल
एंड टाइटल के अंदर क्या डालूँगा मैं, टेक्स्ट डालूँगा, तो मैंने टेक्स्ट लिख दिया फ्लटर बूट कैंप डे 1। फिर रिफ्रेश करते हैं तो यू कैन सी कि नाउ आई हैव फ्लटर बूट कैंप डे 1 रिटन ओवर हेयर। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो मेक मे बी अ ड्रॉर और यहाँ पे बॉटम नेविगेशन बार एक्सेट्रा, बट वो हम कभी बाद में जब वी विल मेक अ फुल ऐप तब हम बना देंगे। अभी देर इज़ इनफ कि एक ऐप बार एंड अ बॉडी विच कंटेन्स these widgets which are center and text जो यहाँ पे है, तो everything else for this case is body. Okay. Now let's discuss container. Do you guys know what this image is? Very common image across almost all frameworks. This image. Can someone tell me? Box model, right? So you can see कि there is a widget here जो मुझे content रखना है. It will have a padding, then border, then margin. If you don't get it, there is no need to get it right now. Eventually we will get it कि क्या कर रहे हैं हम. But you can understand at least इतना कि container is a div or a box basically. So let's only make a container here कि let's try to make a container only. So instead of writing text, let's write a container. ठीक है, this is a container. अब if I reload this, अब इसमें कुछ नहीं आएगा because मैंने कुछ डाला ही नहीं है. So let's try to understand कि which parameters it takes. तो okay, never mind. तो color, let's assign it a color, colors dot let's say amber. ठीक है, let's save this. तो now it took all the space which was available यहाँ पे, but I can also assign it certain parameters कि मुझे इसकी width कितनी चाहिए and height कितनी चाहिए, very common parameters, right? So it confined into certain regions जो हमने बताए थे. Cool. और now it can also have child which is let's say text hello container. ठीक है, तो now it will have certain text. तो हमने अभी इसको इस वाली चीज़ को चेंज करा and now from center we also have a container यहाँ पे and then the text. ठीक है, so we change the tree from center to container to text. ठीक है, now we can also design other things, बहुत कुछ डाल सकते हैं eventually हम, but we try to maintain it into a decoration which takes box decoration and now we have a lot of advanced features. ठीक है, अब we can also write border and border radius. You can see यहाँ पे कि what is happening, थोड़ा syntax है, border dot all, फिर colors dot black, width 3. तो ये तो थोड़ा आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा एंड इवेंचुअली थोड़ी UIs बनानी पड़ेंगी टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सिंटेक्स याद करने के लिए. border radius dot circular 12. और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जैसे ऑल, सर्कुलर, हॉरिजॉन्टल एक्सेट्रा. तो फॉर नाउ वी विल स्टिक टू सर्कुलर. लेट्स सी कि अभी व्हाट हैपेंड. अकॉर्डिंग टू मी देयर शुड बी अ बॉर्डर, then a border radius changed to 12 and border of black. ठीक है, but as you can see यहाँ पे एक error है. The error basically says that if you are using color parameter ये वाला, या तो बॉक्स डेकोरेशन मत यूज़ करो या फिर use the color inside a box decoration ऐसे. Got it? तो now this error will hopefully go away. Yeah. So as you can see now कि border radius आ गया है, then border आ गया है black, 3 width etc etc. Also you can define यहाँ पे padding and margin. तो padding will go outside the border, inside the border, and margin will go outside the border. तो let's try to add padding edge insets dot all. तो what is edge insets? Edge insets means edge insertions.
ठीक है, द फुल फॉर्म इफ वी एक्सपैंड, तो एज इंसर्शंस मीन्स इंसर्टिंग समथिंग अराउंड द एज. तो वी आर इंसर्टिंग समथिंग अराउंड द एज, either inside the edge or outside the edge. What we are inserting? Certain space, empty space. So of 10 pixels around all the edges, I'm inserting space of 10 pixels around all the edges. So as you can see that this moved around 10 pixels away from all the edges. Everyone can understand this. कोई इशू तो नहीं है अभी तक, जो मैंने थोड़ा सिंटेक्स वगैरह लिखा है अभी. सुजल, विक्रमजीत, हरनीत, एनीवन एल्स? ठीक है ठीक है, गुड. तो वी कैन अंडरस्टैंड दिस इतना. लेट्स सी नेक्स्ट क्या है. हाँ, ये दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ कि मार्जिन डाल सकते हो, यू कैन ऐड पैडिंग, देन एज वी एडेड डेकोरेशन, उसमें कलर, बॉर्डर रेडियस, बॉक्स शेडो. एक्सप्लोर दिस आफ्टर द क्लास. आई विल ऐड दिस PDF वगैरह जहाँ पे भी. ठीक है. नेक्स्ट लेट्स डिस्कस फ्लेक्स लेआउट्स, कॉलम्स एंड रोज. तो एज यू कैन सी कि ये जो ट्री है ये सीधा सीधा ही होता जा रहा है. लेट्स ट्राई टू ऐड मल्टीपल चिल्ड्रंस ऑन टू अ सिंगल कंटेनर और वट एवर. तो लाइक दिस. ठीक है. तो एवरीवन अंडरस्टैंड्स कॉलम्स एंड रोज जनरली कि हाउ दे वर्क, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ कॉलम, व्हाट इज़ डायरेक्शन ऑफ रो. एनीवन who knows? No one knows about columns and rows. I guess Ayush is speaking something, but I am not able to listen. Anyone else? Ankit? I am not able to listen. एक minute यार. Can someone speak? Just एक बार टेस्टिंग के लिए. नहीं यार. ओके ठीक है. It's working. तो I was asking कि anyone knows columns and rows? And vertical shape is column. Okay. Cool. सही है. तो that's what we are going to make. That we will try to make a row and column basically. So let's remove this container, or maybe let's keep this container, and instead of this child, which is a text, which was a single node, यहाँ पे इसका हम एक बना लेते हैं. Let's give it a basically a node which can have multiple children. So for this instance, let's make column, and column can now have multiple children. So we can have text 1, text 2, text 3. So let's try to do this. ठीक है. We remove the text and let's add column, and now this column will not have obviously child but children, which is a list of child. So let's add multiple texts here. So text 1 and text 2, text 3, comma separated. So let's try to see ki abhi what we get. And as you can see ki now there are multiple texts lying together in a column, right? Similarly, we can change it into a row. The column we can change into a row, and as you can see, this is now aligned into a row, but there is not enough space in this container, which is fixed right now. So let's make it maybe 180 for this. Oh, not the height but the width for the sake of it. As you can now see that it is being fit into a column. Okay, where it is, yeah, so we got it, main cross axis and main axis. So as you can see ki the both of these widgets maintain a main axis and a let me open chat. Is indentation important like Python? No,
indentation is not important like Python. It is just to here it is automatically intended just for the sake of it, because out of courtesy, because as you will go into the nesting deep and deep and deep, you will get lose the track of it. So that's why you can see that these comments are automatically made, not by me but by the IDE, to understand that there is here the row ends and here the container above it ends, because you can get nested deep into it and eventually you will get lost. So that's why we keep it intended, but yeah, it is not necessary. Okay, we were saying that both of these widgets maintain a main axis and a cross axis. As you can by the name suggest that the main axis is the axis where the how the contents are stacked or placed. So in this column, this is the main axis is downwards and the cross axis is this one. For the row, the main axis is this one and the cross axis is this one. So so that's how you can also assign properties to this axis. So let's say you can change the alignment of the main axis. So if I write main axis alignment dot center, so now all the contents will go into the center. So where are them? Let's see. So now as you can see, पहले वो right में थे सभी at the start, or left में थे sorry at the start, but now they are at the center. You can also change properties and play around with let's say space between, space around, etc. So now you can see there is a space between them, and certainly you can do multiple things. One good thing to know that row and column both by default use as much space as they are provided by their parent. So let's say this container is 180 size. अब कहाँ गया वो एक्सकल ये रहा ना. तो this was the container जिसका ये 180 था width. Now if I just make an empty row, automatically it will take 180 का size पूरा. Now इसके अंदर you can make one widget like this text, then ये वाला text, then ये वाला text, but this automatically took the whole space already. ये जो रो था इसने ऑलरेडी स्पेस ले लिया. इट्स जस्ट दैट यू आर नॉट एबल टू सी इट कि कितनी स्पेस लिया उसने. सो यू कैन ऑल्सो चेंज दैट. यहाँ पे यू कैन डू min access size dot max is by default. You can change it to min also. So now you will see कि it will only take the required space, but यहाँ पे ऑलरेडी पूरी स्पेस ले रहा है तो you can't exactly examine. तो अब ये इतनी स्पेस ही लेगा जितनी इसको रिक्वायर्ड है. बट these were the basic things. अगर किसी को इनमें कोई भी डाउट है रो एंड कॉलम में, you can ask. इनमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं obviously. We are not going to discuss all the properties, but eventually you are not going to limit यहाँ पे. When you will require to learn certain property, you can just google it and find out कि how to let's say maybe add box shadow to this, because मैंने वो डिस्कस नहीं किया, just कोड में लिखा हुआ था PPT में. But yeah, anyone wants to ask something, or anyone has any doubt or बताओ. समझ आ गया सबकी को कॉलम एंड रोज? ओके कूल. तो ये हमने कर लिया. देयर इज़ अ स्मॉल असाइनमेंट बिकॉज अभी टाइम भी नहीं है. तो वन यू विल गाइस डू कि मेक अ सिंपल कार्ड लाइक दिस. इसमें डू समथिंग लाइक कि मेक इट इन अ कॉलम, मतलब जो ये टेक्स्ट है इनको कन्वर्ट इनटू कॉलम. Then change it to text one to something like name, Rishi, age 18, and let's say designation DevOps engineer, kind of like this, and make a personalized card for yourself into app, and try to design it with changing the colors and border radius, etc., whatever is suitable. And there is also a link here which is of expanded. So there is another widget which is also a flex widget named expanded. So I will urge you to read this document and also view this video. It's a 4 or 5 minute video, I guess, not sure. 1 minute video. So see this, read the examples, try and see how expanded widget works. Now you guys know how column and rows works.
There is a third one which is expanded. I probably guess that you guys know flexbox in CSS. If yes, then it is very easy to understand. But if no, you have to figure it out yourself, that what is what is expanded widget and how it works, right? I'm attaching a link of the Flutter official Flutter documentation. If you guys don't get what is happening here, you can ask me, but only ask me after researching it thoroughly on Google or YouTube, etc., about expanded widget, and try to implement it here into the card app which we are trying to make with your personal details, right? Let's see next. Okay, so the assignment is converted into two parts. One of this is the trying to understand what is expanded widget, and making a card for your name details, etc., right? Where it is, yeah. One second. Yeah. अरे यार, एक मिनट. Is it visible now? Sorry for the call. बाकी I'm going to tell one more thing. आवाज़ आ रही है ना सबको? सही है ना? Okay. So from what we have learned right now, from the start, this thing which I told you about Skia, JIT, Impeller, AOT, Vulkan metal translators, etc., and the pixels which we were talking about, that how you can render the pixels, ये वाली चीज़, in from a 2D array to making something very similar to Flutter. I have already basically now you can make your own Flutter engine. The first class generally is that how we can make something using Flutter, but from this class we have established that what is Flutter and how it works internally. एंड ओबियसली सिंटेक्स तो आप सभी सीख ही सकते हैं कि रो कॉलम, उसमें कौन सा बॉर्डर, कौन सा क्या, बट द पॉइंट इज़ कि वी नाउ अंडरस्टैंड कि फ्लटर भी कैसे काम करता है. तो इफ़ यू वांट टू मेक फ्लटर फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स, समथिंग वेरी सिमिलर टू फ्लटर, you can explore this repo. This is kind of a project or a framework very similar to Flutter, made by me, funkit.in. So this is a framework. You can also make Linux apps and cross-platform applications using this. This is totally written in C++, and you can write very similar syntax to Flutter in this framework and make something like simple app using C++. So as you can see कि ये भी काफ़ी similar है because ये मैंने ही लिखा है. तो this is a text. You can share the location, you can make a row. Syntax थोड़ा अलग होगा obviously. I will show you something which I made using my own framework, which is very similar to Flutter and how Flutter works, because ये भी क्या कर रहा है कि there is a 2D array जो मैं maintain कर लेता हूँ. अब वो 2D array में हर एक location पे there is RGB values, and for the RGB values you just have to calculate when to change them. So let me show you a small Flutter live.web.app. So this is something, you can see this is a particle simulator. So there are certain particles which are moving around. Now you can now there is a matrix for each particle to the other particle. तो जैसे मान लो यहाँ पे 4 कलर्स है ना, 1 2 3 4 5 कलर्स है. तो हर एक पार्टिकल की अट्रैक्शन दूसरे पार्टिकल से कैसे है, दैट आई हैव डिफाइंड. कि जैसे मान लो ये ब्लू है, तो ब्लू विल हाउ विल ब्लू इंटरेक्ट विद लेट्स से ग्रीन, या फिर मान लो ऑरेंज.
तो यू कैन सी कि ब्लू की ऑरेंज से या फिर ब्लू की ऑरेंज से इंटरेक्शन 0.7 है, लेट्स अज्यूम, विच मीन्स कि इट इज़ अट्रैक्टेड 0.7 फ्रॉम 1 to -1 के बीच में, ठीक है. तो दैट्स हाउ यू कैन सी कि सम पार्टिकल्स आर रिपेलिंग, सम पार्टिकल्स आर अट्रैक्टिंग. दिस इज अ स्मॉल गेम विच इज़ मेड यूजिंग C++ and this framework. So if I add more particles, you can see how they interact, and you can change the interaction matrix using this. So tribe, you can basically, all the particles which are similar will attract to each other and repel other particles. So as you can see, the rings are merging together, and so the rings are merging together, and if I do chaos, then it is random, and for symbiosis it is random. Similarly, you can explore it. Now hunt will attack each other and harm will also attack each other, etc. So this is a small game which is made using this framework. You can also explore this if you want to, but there is no need. You can just go around and explore the assignments which I gave you. Next, this is the code for making simple simple cards which we discussed. So figure it out, and this is a recap. What we learned is a Flutter control. Sorry guys. So yeah, this was the recap, and what is next? In next class we will make a dice roller, some logic, and we will understand the element tree and the state management, etc. This is the link you guys can open. I have already shared the PPT there, and hopefully I will share the link to the recording also. I will also add this link into the group, etc. So this is where we will maintain the whole bootcamp's slides, etc. Any questions if you want to ask right now? Anyone? Any questions? Yeah, so for the assignment, you have to start the Flutter app, create a new Flutter app. Then what you need to do is, as I told you, basic syntax like how to make a container and how to make columns, rows, etc. Do that, but instead of this text which I wrote here, write your details like Harneet Kaur, my name colon Harneet Kaur, then age, let's say 18, and branch, information technology, etc. Write your details and make a card, beautify it, add good colors, etc. And I will maybe add a form, maybe just tell you to add into the groups the screenshots of the apps. However, so I don't need the code right now. Just do it. Make a screen, give me a screenshot, etc. Then second thing you need to do is to explore third widget. I told you container, column, row, material app, scaffold, etc. One thing you need to explore is expanded. So for the link to explore that is in the PPT, which I will. The link to the PPT is this, and the link to the expanded widget is this. If you don't find this link, you have to explore it yourself, and if you don't find it, you don't understand it, then come to me to ask for expanded widget, right? So this is the thing you need to explore, this is the thing you need to make, and yeah, that's it. Anything else? गुड. वैसे क्लास वगैरह कैसी थी, मतलब इनफॉर्मली अगर मैं थोड़ा पूछूं तो? या मैं भी पहली बार ही ले रहा हूँ बिकॉज क्लासेस वगैरह. लिंक फॉर द पीपीटी, आई विल शेयर यू लिंक फॉर द पीपीटी. रुको. The link for the PPT is in the group. You can download it from there.
ये बताओ स्पीड वगैरह कैसी थी, या मतलब डू यू गाइज अंडरस्टूड या नहीं? एनीवन? Cool. Session was good. Okay. Anything कि if you want to improve next time, or you want कि slides ना हो, सिर्फ कोड हो, या फिर whatever कि जैसा भी कुछ चेंजेस करने हो, स्पीड इंक्रीज़ करनी हो, या फिर जो स्ट्रक्चरल चीज़ें हैं, जो इंटरनल चीज़ें हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बताई कि इतना अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टेल मी हाउ टू मेक एन ऐप स्ट्रक्चर वट हाउ एवर यू वॉन्ट, कि यू गाइज कैन टेल मी फॉर द नेक्स्ट सेशन. एंड आई गेस 2 घंटे से ऊपर ही हो गए हैं. वी विल ट्राई नेक्स्ट टाइम टू कीप इट अंडर 1.5 hours. Baki, if you guys have any issues regarding the assignment, regarding the PPT, regarding what we told today, you guys can, it would be best if you guys send me a voice note instead of a text. Voice notes are much better, or directly call me. Baki to I guess everything is okay. If you guys want anything else, then tell me. बाकी मैंने PPT का लिंक डाल दिया ग्रुप में. एंड दिस रिकॉर्डिंग वुड बी अराउंड 20-25 GB of recording. I will try to compress it and upload it on YouTube unlisted from there, and then also add the link onto the website itself. जो मैंने लिंक शेयर करा, तो आई ऑलरेडी मेड एवरीथिंग, बस मुझे लिंक ही अपलोड करना है, तो इट विल ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट देयर इफ़ यू वांट टू व्यू द रिकॉर्डिंग एक्सेट्रा. एंड PPT तो मैंने दे ही दी है. बाकी इफ़ यू गाइज नीड एनीथिंग एल्स, देन टेल मी. आई गेस it was a long session. Cool guys. Now you can leave, and if anyone has any doubts, they can stay and talk. Thank you, sir. Ashmit, sir. Okay. Good night. All the best.